बिंदिया लगाती तो कांपती थी पलकें मायरी। पिचक धूम पिचक तो मेरा कोई, मैंने तो बस गाना बनाया था, वो गाना लिखा था डीजे के लिए। डीजे गॉट इन्वॉल्व विद अ गर्ल जिसके साथ उसकी शादी होने के कोई चांसेस नहीं थे। मतलब इट इज दैट स्टोरी दैट वे ही वेंट टू मीट द गर्ल्स फादर, ही सेड कि तू करता क्या है, तो ही सेड बेस बजाता हूँ। ही सेड बड़ी अच्छी बात है, बट करता क्या है? और उस वीडियो की वजह से दुनिया जाके उस वहां पे शूट कर रही है। किसी बनारस कोई नहीं देखता था, इट वाज अरे गंदी जगह है, पंडों की जगह है, ठगों की जगह है। अब दुनिया को देखो, क्या बाहर के क्रूज, क्या इंडिया के क्रूज, एवरीबडी इज गोइंग एंड शूटिंग इन बनारस। आई विल टेक क्रेडिट फॉर दैट। द मेन थिंग अबाउट बीइंग अ म्यूजिशियन इज द अटेंशन फ्रॉम द चिक्स। बाकी उसका कोई कोई होता नहीं उसके आगे। सो माई बिगेस्ट अचीवमेंट विद माँ वॉज दैट in 2012 she appeared in one of my music videos. So there's a joke about me, प्रदीप दा कहता है पॉली जैसे एक्टर है ना, उसके सामने गाय भी खड़ी कर दो ना तो उसको उससे भी प्यार हो जाएगा। People don't want you to do well. If they see you doing well, they try to pull you down. Do you think your voice is for Bollywood? I don't think so. My dream collaboration is Beyonce. Can you sing the song? ये शहर. Oh, ये शहर मेरी जान. So what has changed that era and this era? That era was about love. This era is about money. Your most rock star moment in Operation Theatre and on stage? It was in a college in Delhi. A woman came and bit me on my lips. उदित जी आ गए तो फिर आप जैम नहीं करेंगे उनके साथ? I love भाई? Udit ji, yaar. I love that guy. Define Indian music industry in one word. Corrupt. महाकाल चलो. एक सुर में था, एक नहीं था. Bro, you're the only guy in the world who mimics me. Really? There's a museum in Bangalore. तो उसके अंदर बैंड्स के बारे में बात की है। तो जहाँ पे दिल्ली लिखा हुआ उसके ऊपर इतना बड़ा यूफोरिया लगा रखा है। कमरिया 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 करेला पाला। I gave up all my rights to the label. जो चीज़ rightfully मेरी है, मेरे पास होनी चाहिए। हाँ. जिंदगी है धुआं तो क्या, बुझ गई हर सुबह तो सुबह क्या, तो क्या? रूठा मुझसे खुदा तो क्या, हो गए हम जुदा तो क्या। Hello and welcome to yet another episode of The Tuhin Show. And we are in Delhi. अब देखिए, अब दिल्ली में आते हैं तो जिगरी दोस्तों से मिलना तो होता ही है. अब मैंने कहा कि यहाँ पे आए हैं तो एक शख्स हैं जिनसे हमेशा मैं बात करता हूँ, काफ़ी सालों से इनसे बातें करता आ रहा हूँ, अंदरूनी बातें, बाहर की बातें, सारी बातें. तो मैंने कहा कि आज थोड़ा अप क्लोज एंड पर्सनल हो जाएं. We are meeting on a camera, and he is the one who defined Hindi rock in India. The man who gave music bands a direction, a pioneer who told India, you don't have to sing in English to be heard by the world. He didn't just make music, he made memories. Frontman of one of the most loved and iconic indie rock band, Euphoria. A rock star, a doctor, a dreamer, an ever-evolving sensation. A bhaiya, a Babu Moshai, Sadi Dilli ka Londa, the father of Hindi rock, Dr. Palash Sen. और तुहिन का दादा। Tuhin ka dada. How are you doing? I'm very good. I'm first of all so happy to see you because we hardly meet. आप तो बंगलोर में हैं और हम हर जगह घूम रहे हैं। बट तुझसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तो सारी मेमोरीज वापस आ गई हैं एंड एज आई सिट इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू, आई मस्ट टेल यू, आई नो दिस, आई विल ऑलवेज कॉल हिम अ बॉय. आई नो दिस बॉय फॉर द लास्ट 21 years and it is one of the most amazing relationships I've ever had. मेरे फ़ोन पे शायद एक या दो या तीन लोग जर्नलिस्ट के नंबर्स हैं, या फिर आरजेस के तो शायद एक ही या दो ही होंगे, और Tuhin is always on that list because he's not only a person who has actually seen my journey and been a part of my journey as I have been a part of his journey. He's also मतलब जिगरी दोस्त भी नहीं बोलूँगा. He is my brother. I look upon him as a younger bro of mine, and it's amazing how we have stayed in touch and been so close to each other over so many years. Yeah. And not really followed the same paths in life, but in so many ways our path is the same.
And when I see him over here doing his show as a freelancer, it makes me very, very proud. I've always been very, very proud of him. And just now, when he was giving this kind of introduction, वो 56 इंच की छाती हो रही थी कि देखो कितना अच्छा बोलता है. God bless you always. Thank you so much, Dada. Thank you so much. Thank you so much. You're not a morning person, na? Okay, so today is the first day of my getting up early in the morning. So he's asking me, इससे मुझे पूछा भी कि we'll do it in the morning, will you be up? And in that moment I felt very embarrassed कि देखो मेरा छोटा भाई है, तैयार है सब कुछ करने के, और मेरी my sleeping habits make people delay their schedule. So I promised myself, today onwards, my mom is going to be very happy. Today onwards I'm going to wake up early in the morning. It's because of my bro. पक्का बताओ, फिर मैं पक्का। पूरे बैंड में फैला दूंगा ये बात. पक्का, तूने सुबह जब भी फोन करना होगा मैं जगह होऊंगा. मैंने बोल दिया. Super. So what is your breakfast like? Or do you? I don't have it. You don't eat You know it. breakfast. I don't wake up. Any which way that the way I follow my life, I always think of having 2 meals a day. My mom is also like that. So हमारे घर में ऐसा ही सीन है कि 2 meals a day. So lunch and dinner. Maybe an early lunch and an early dinner. But I just follow that. It's only on days of concerts कि जब मुझे थोड़ा सा और fuel चाहिए होता है. Right. So then I snack in the middle also. मैं कुछ मीठा खाऊंगा, just to be ready for the concert in the evening. Otherwise, it's just 2 meals a day and nothing. There's no snacking, nothing else. I am a teetotaler. So there's nothing else at all. You're always glowing. तो उस glowing त्वचा का राज क्या है? मेरी माँ यार. आधा कश्मीरी हूँ. मतलब कश्मीर का हूँ. कश्मीरी तो नहीं बोलूँगा, कश्मीर का हूँ, डोगरा हूँ. And I think my mom is the most beautiful woman I've ever seen in my life. She's a doctor, she's a gynecologist. But then she's always glowed. I think it is her inner strength, inner beauty, inner happiness that comes to the face. मेरे साथ क्या है ना, तो मैं हमेशा ज़िंदगी में चीज़ें पॉजिटिवली देखता हूँ. And I look at things very, very happily. And I think there is one trait of mine which actually makes me glow, look happy, is that I always look at everybody with a lot of pride. And I want that person to do better and better. हम लोग ना बहुत ज़्यादा टाइम इस चीज़ में बिता देते हैं कि यार मुझे क्या मिल रहा है. मैं इस चीज़ में अपना टाइम नहीं बिताता हूँ. मैं ये देखता हूँ कि बाकियों को क्या मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, when I look at you and I see you doing all these interviews with amazing people, I feel very proud. And then you go and host these events. I feel very proud because whatever it is, in my life, this is very important that if the people around me are happy and doing well and successful, तो मैं उसमें मेरा भी एक मेरी खुशी है. There's another thing which people can learn from you, and that is to be a rock star. You don't have to drink, you don't have to be in drugs. You just have to be high on your music and high on the audience. Absolutely. And that is something. I have been to 2 professions which are, infamous for all kinds of abuse. First is medicine, and then is music. My logic from day one was this only: why should I change my mental status, or the way I look at everybody, to be happy or be more productive or be more better, a better performer. जो मिला है इसी के साथ, let's work with this. And God has been kind. Right. But then again, I will say this only: if all of us start looking at everybody else without any kind of competition, without any kind of grudges, or trying to bring, which we Indians have this habit of bringing down people. I'll try to uplift people. चलो यार, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ. मुझसे कुछ हो सकेगा, I will do it, and I will do it with happiness. I have no I can't even think of once in my life that I've looked at anybody with a competitive way. It's always positive. It's helping people, forgiving situations, being positive about them. I think now coming back to your question, वही है त्वचा का राज. क्या बात है, very nice. When we talk about Euphoria, people say 1998 में धूम आया था, but Euphoria is not 1998, it's 1988. Correct. When you were in your college. Correct. And you wrote a song called Heaven on the 7th Floor. Correct. Do you remember that song? Of course. What was that song like, if you can play 2 lines? Or if you can sing 2 lines? I hope I can play it right now. But I was just, basically, see, I understood very early on in life, when I was in college, that the main thing about being a musician is the attention from the chicks. बाकी उसका कोई होता नहीं उसके आगे.
अच्छा, वो 1988 में भी वही चीज चल रही थी? यस, वो कब से नहीं चल रही है, हम सब पैदा हुए ना कोई उसका रीजन है, हमारे बाप कंचे नहीं खेल रहे थे। तो अटेंशन मिला था आपको? बहुत मिलता था व्हेन आई वाज ऑन स्टेज, जैसे उतरता था मैं भाई बन जाता था। क्या बात कर रहे हो? Yeah, I'm telling you. झूठ बोल रहे हो ना, मैं तेरे से झूठ बोलूंगा। I mean, you are the guy who can catch me at every level. You see, I was a thin guy, short guy, you know, and there were two things about me that people could have found attractive. One was obviously the fact that I was doing medicine, and secondly the fact that I could sing. हाँ, तो इससे अटेंशन मिल जाती है, बट सिर्फ स्टेज पे मिलती है। स्टेज के बाहर ना सिचुएशन वही होती है, सारे दुनिया भर के लल्लुओं को लड़कियां मिलती हैं, हाँ। और जो गाना वाना गाते हैं उनको लोग लड़कियां देखती हैं। अच्छा। I had a room on the 7th floor, and the 7th floor was the fun area because all the people who were interested in music and rock music, they used to stay over there, and the girls when they used to visit the 7th floor. So when they came to the boys' hostel, they would come to the 7th floor. So it was something. Give me a little love and give me a little bit more. Can't you see my fire like you did before? I can't stop, baby, someone's knocking at the door. So give me a little heaven on the 7th floor. On the 7th floor. On the 7th floor. So this small song gave me a lot of more attention. But attention from far. कि हाँ अच्छा गाना बनाया था इसने on the 7th floor. What is it all about? Then I can't explain what it's all about. It's about a room on the 7th floor where somebody wants to have fun. राइट। तो उस रूम में फन हुआ कि नहीं हुआ? No scene यार। मैं बताया ना, मेरी बातें बड़ी मजेदार होती हैं, बातें मैं बहुत कर जाता हूँ, बट आई एम वेरी सिंपल मैन। वो कहते हैं वो सारे दुनिया भर के जो भी फंडे हैं, मॉरल्स हैं, वो सारे मेरे अंदर ही मेरे माँ बाप ने डाल दिए। सो देयर वाज नो फन, there was just a happy man over there singing songs, listening to songs, and you know going through his life, starting but with music. था थोड़ा टॉम पेटी स्टाइल। Very nice. Yeah. Very nice. You are a doctor as well, and you've been telling, and I've been hearing this for a long time. You're the 17th generation doctor. Absolutely. राज वैद्यस के टाइम से आपकी फैमिली में डॉक्टर्स हैं। So अगर आप आयुर्वेद देखोगे, so आयुर्वेद के जो पिता थे धन्वंतरी जी, वो हमारे सबसे आगे के पूर्वज। He is the number one पूर्वज, and then everybody obviously was part of Ayurveda only. Went on. Last 4 generations have been part of allopathy. Right. So I am an allopathic doctor, but I think I follow more Ayurveda than I follow allopathy. So that is why. But then the thing is, तो मेरे घर में सब लोग आते हैं, मतलब my father's side, everybody was a brilliant singer, but a doctor too. Right. The joke is I'm the worst singer and the worst doctor out of all of them. And no, Kinshuk is not a doctor. He's done his neurosciences, but he's not a doctor. But he is a singer. So that's how we have evolved and walked ahead. I'm very proud of the fact that, you know, and the funniest thing is, I'll just tell you now, when I'm on camera, I'm going to say this. Duhin actually knows everything, but I'm going to make all of you know. So my father's side all doctors, my mother's side were all Purohits. और? Purohits. Okay. My Nana's family was the Raj Purohits. Okay. So दोनों तरफ के लोग पढ़ाई लिखाई वाले थे और गाना मतलब जो भी मतलब so definitely we were not the tough guys and the people who are, you know, soldiers and stuff like that. And समय पता, you know it, you know, like the Brahman Samaj was supposed to be. So I am just going to say this, that, you know, I was brought up in 2 families where I didn't even know my caste. Okay. Yeah, I was never emphasized that, you know, this is your caste. ऐसे भी, like for example, if you're a Chaturvedi, it's pretty much obvious what your ancestors were. But in my case, I'm a Sen Sharma. So Sen Sharma, maybe Sharma's part, but in my family there was never this thing कि वो अछूत है और, you know, ये नहीं है, वो नहीं है, हमारे घर में ये लोग खा नहीं सकते, इनको अब तुम छू नहीं सकते, उनसे बात नहीं कर सकते. All that was not there in both the sides. So I grew up in a very, very you know, emancipated and an independent you know, atmosphere, and I would like to thank all my you know, ancestors for that. But do you have any interesting story from Raj Purohit time, from Raja Maharaja time, which you know
कि कुछ ऐसा हुआ था कोर्ट में या कुछ हमारे राज वैद्य ने ऐसा किया था? I just know because the last person who pursued being a Purohit was my Nana's father. Okay. So because my Nana was in the J&K High Court, he was eventually a judge and a chief justice. Okay. So वहाँ पे जाके ऐसे ही पढ़ाई तो but हाँ, yes, I have seen the power that my family had, and I would never understand कि जैसे मेरे घर वाले, जैसे मेरे नाना के जो बड़े भाई थे, अबे नाना भी also, लोग ऐसे क्यों खड़े होते थे, मुझे नहीं पता था। मुझे लगता था कि, और मुझे लगता था वो मेरे सामने झुक रहे, मुझे नमस्ते कर रहे, छोटा सा था। But that is all I've seen. I've seen that thing that is prevalent in this society where people do bend down in front of so-called castes. बट हाँ, मैं फिर से बोलूँगा कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम नहीं थी, कि ये नहीं कि हम लोग ये हैं या वो हैं, मुझे ये सब चीज़ें पता नहीं चली। हाँ. जब बड़ा हो गया तब पता चला कि भाई यार ऐसे ऐसे डॉक्टर्स थे, अब मैं 17वीं जनरेशन हूँ, ऐसे ऐसे पुरोहित थे, तो वो लोग मतलब दे वर रिवर्ड एंड दे वर वर्शिप्ड more than the राजा also. Right. तो वो सब चीज़ें मुझे पता है, I know about them, but much later in life. So कभी ऐसा नहीं था कि इन लोगों के पास राजा ने 3-4 गांव दे दिए हों जो आपको पता नहीं है कि वो 3-4 गांव है? I didn't know. That's what I'm saying. That all that was not spoken about. It was a very, and because my Nanaji became a justice and a judge, and then my Chote Nanaji, his younger brother, he was a collector. So they were both working, they were government servants. So I didn't know about these things. It's much later than when you prod your mother a bit and your nani a bit, then you get to know कि हाँ ऐसा था. But like for example, my Nana was in the High Court and he didn't even have a car. Okay. So the guy used to walk to his office every day. Okay. And then he became like the member of he was the head of the Anti-Corruption Commission of J&K. He used to still walk. So once एक कहानी ये है कि whoever was the CM at that time, he stopped his car and everybody used to call my Nana पंडित जी बैठ जाइए। कहते नहीं मैं नहीं बैठूंगा। कहते अरे मैं छोड़ देता हूँ ऑफिस से। कहते नहीं, आप भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो, मैं भी हूँ, अगर आप कोई गलत काम करोगे, अगर मैंने आपसे एहसान ले लिया, I can't work against you then. So I will not sit in your car. So there were times like that, यार, मतलब मुझे पता है कि I have come from a family जहाँ पे लोग ऐसे ही थे। मेरे दादा थे, डॉक्टर थे, तो he had a small clinic in बनारस। एक तो बनारस के लोग ऐसे भी दिल फेंक होते, तो अगर अच्छा मज़ा नहीं आ रहा आज, चलते हैं घर, कोई आया तो मुझे बताया ना, मैं घर से आ जाऊँगा। तो घर जाके तो मेरी दादी कहती अरे आज आप जल्दी आ गए, कहते कोई नहीं ताश खेलते हैं या फिर एक बुक पढ़ते हैं। You understand? So I come from that kind of a family. Right. And even with my father, he turned to private practice. तो वो अपनी तरफ से ही दवाइयाँ दे देते लोगों को, नहीं तेरे पास नहीं होगा पैसे, तू दवाई ले ले। Right. या फिर घर ले आते थे, कोई मतलब लग रहा है कि बहुत बीमार है, उसको दवाई देनी है, तो घर ले आते थे। मेरी माँ को कहते हैं पुष्पा, मेरी माँ भी डॉक्टर थी, पुष्पा ये भूखा है, इसको दवाई देनी है, इससे कुछ खाया नहीं है, तो इसको कुछ खिला दो। फिर मैं दूध के साथ इसको दवाई, तो आई हैव सीन दैट काइंड ऑफ टाइम यार। तो मतलब मैं अपने बारे में यही कहूँगा कि वॉट एवर आई हैव डन इन लाइफ, इट इज़ बिकॉज ऑफ वॉट एवर आई सॉ इन माई फैमिली। इट वॉज फुल ऑफ पीपल जो कि दिलदार थे, सच्चे थे, वेरी ऑनेस्ट पीपल, एंड किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया मेरी फैमिली ने। सो वेरी ह्यूमिलिटी के साथ बिल्कुल they have brought you up and they used to stay. बिल्कुल। So basically you know that my mother is from Jammu and my father is from Banaras. My first 5.5 years was spent in Jammu because my parents were young doctors. So my Nana said we'll take care of Polly. So मेरे नाना नानी ही मेरे माँ बाप थे। तो बंगाली कौन है? मेरे पापा के फादर ना। Okay. हाँ, so मेरे ननिहाल साइड is from Jammu and Kashmir. Okay. और तू कह रहा है कि हाँ, it's a very important question. Lots of Bengalis shifted to Banaras. Okay. Because Banaras was supposed to be the holiest place in the world. ये बोला जाता था कि जब आप मर रहे हो, you better be in Banaras. अगर आप मरते समय बनारस जाओगे तो आप सीधे हेवन जाओगे। So बनारसी बाबू नहीं है, बाबू मोशाय बाबू हैं वो। Actually दोनों हैं, दोनों हैं। Because I'll tell you, because we are from a village in West Bengal called Bardwan. So वहाँ से there were 4 brothers who were my great grandfathers. 4 brothers left that city
and went to various cities. So जिस लिरिच के हम हैं, he came to बनारस. तो हमरा अब से 150 साल पहले 200 साल पहले कोई आया है तो फिर वो बनारसी है. राइट. बट उस समय लोग, स्पेशली बंगाली पीपल, दे यूज्ड टू गो टू बनारस के यार हम जब मरेंगे वी शुड बी हियर सो दैट वी गो स्ट्रेट टू हेवन. ओके. वाह. ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं करना पड़ेगा. वो किसी को पता भी नहीं वो कहाँ गए यार. they didn't think about that. And you studied orthopedic. Yes. And तो हड्डियों के डॉक्टर हैं आप basically. University College of Medical Sciences. So I am very blessed to him. I heal two ways. One by medicine and one by One music. by music. म्यूजिक से तो मैं दिल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, दिल का डॉक्टर हूँ, बट हाँ अदरवाइज ऑर्थोपेडिक. तो प्रैक्टिस करते हो आप ऑर्थोपेडिक? अभी भी करता हूँ. ओके. दैट इज माई डील विद माँ. माँ ने ये कहा था इतनी पढ़ाई कर रखी है, सीट मत वेस्ट करो. हाँ. तो गाना गाओ. हाँ. पहले तो वो उसके गाने के भी अगेंस्ट थे कि भैया ये गाने में जाएगा फिर दुनिया भर के गलत काम करेगा, ऐसे करेगा वैसा करेगा. तो उनको मैंने प्रूव कर दिया. सो माई बिगेस्ट अचीवमेंट विद माँ वॉज दैट इन 2012 शी अपीयर्ड इन वन ऑफ माई म्यूजिक वीडियोज़. तो मैंने कहा दिस इज़ द बिगेस्ट वैलिडेशन आई नीडेड, आई हैव गॉट इट. सो अगर आपको हड्डियों का इलाज करना है, फ्रैक्चर हो गया, तो आप इनके पास आ सकते हैं. हाँ, और इलाज के साथ साथ ही आपको गाना भी सुना सकते हैं. एक्स्ट्रा पैसा लगेगा उसका. नहीं, पैसा पार्ट ना मेरी जिंदगी में नहीं है. तो फिर ये घुटना देखना, ये बड़े टाइम से दर्द कर रहा है. ये मैं क्या देखूंगा, मेरा घुटना भी दर्द कर रहा है. दोनों घुटने लेकर बैठे. दिमाग यही है ना मेरा. क्या करोगे. तो ऐसी पेशेंट से मिलते हो आप, अरे तू क्या है, मेरा भी दर्द कर रहा है, बैठ यहाँ पे चाय पी. देखो यार मजाक पता क्या है, पहले लोग मुझे दिखाने आते थे, हाँ. अब वो देखने आते हैं, तो मैं क्या बोलूँ. मॉडेस्ट हैं हम एकदम. यू आर द फेस ऑफ इंडी म्यूजिक बिफोर इंडी वर्ड केम. सो डू यू थिंक that today's music scene gives you enough credit? I don't really care to him. First of all, I don't think I am the face. I might be a long-lasting face, but I personally feel all the people who came before me, whether it was Daler Paji or Lucky Bhai or whoever came before me and did independent music, I think they should get way more credit than I should. Right. get. I'm around and I don't think of myself as somebody who has lost relevance. The music is always relevant and good music will, like अभी भी आप ओ सनम जरूर सुनोगे. वो हमसे भी पुराना गाना, हम तो 98 में आए थे, वो तो 94 में आ गए. Right. And even like see the way Baba Sehgal is doing, I mean that was music that sounded like fun, and jokes. And now look at, he suddenly is, the whole world wants to listen to Baba Sehgal because even in the rap circuit, people actually accept him as a trailblazer. So मैं अपने आप को कितनी क्रेडिट देता नहीं हूँ. आई जस्ट थिंक यार ठीक है, हो गया, बड़े आए बड़े गए. सो कोई रहता तो है नहीं यार. हम लोगों ने मुझे, आई अंडरस्टैंड द मीडिया हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ क्रेडिट. आई थिंक दैट्स ऑल्सो बिकॉज आई हैव लास्टेड. द बैंड हैज़ लास्टेड. We do concerts all the time, and we keep on doing new things. Like for example, our new video is coming out, and that relevance is always there. People obviously compare whatever we do with Mairi, but हम लोग नहीं compare करते. हम तो गाना बना रहे हैं. आपको अच्छा लगा, बड़ी अच्छी बात है. अच्छा नहीं लगा तो और मेहनत करेंगे. So I think this, I would even give more credit to DJ from my band. I give a lot of credit to DJ because this is all he has done for the last 88, as you said. Right. So this is all he has done. So I give a lot of credit to DJ. And if DJ was not there, I don't think Euphoria would have been there. So DJ has been with you since 88? No, DJ has been with me since 91. 91. Okay. That is when you were doing the college gigs and everything. Yeah. We started doing college gigs. DJ was there, and I honestly, Tuhin, I wouldn't have started doing original music, my own music, if DJ wasn't there. Right. Because he understood मैं क्या करना चाहता हूँ. And musically उससे ज़्यादा aware बंदा कोई दुनिया में नहीं है. He is the most intelligent musician I know. नहीं, वो एक साथ में चाहिए होता है. अगर टैलेंट है तो एक टैलेंटेड साथ भी चाहिए होता है. No, he is super talented. वो तो किसी और लेवल पे, मतलब. और उसके बाद प्रशांत. Then Prashant entered with Mairi. So Prashant came way in 2000s. He came. Yes. He came in 2000 only. With Fir Dhoom and... Yes, because the first time I met him was when he recorded Mairi. Right. Then in my head I thought, when we are pursuing that kind of sound, why don't we get him in?
There's a full story. I'll come to that on Mairi, how Prashant helped in Yeah. the beats of Mairi, how Yes. Mairi was formed. Completely. But you know, Euphoria started from college, gave back-to-back smashing hits. I remember Dhoom, Fir Dhoom, Mantra, Gully. All the actresses made really big. Not to forget Mairi, and all these actresses made really big. Did anyone come back to you? To do what? To do work or to talk No. about you on the greater stage, on the bigger stage? I तो इन फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट इंटरेस्टेड. मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कौन कितना क्रेडिट दे रहा है. Right. मतलब इन रियल लाइफ आई हैव सीन सो मच ऑफ बिट्रेयल. तो ये तो मतलब दे वर जस्ट पीपल हु केम एंड वर्कड. They came and worked. They did their job. I didn't expect anything else from them. Right. They have all done very well. Again, as I said, I to pray for everybody. Right. Everybody should do well. If everybody does well, there will be a lot more happiness in the world. Who was your first actress? Indrani Das. No. Michelle Innes. With Shana. No, Or with Dhoom. Dhoom Pichak. Dhoom Pichak, Michelle. And then Neha Dhupia. Neha Dhupia. For Shana. Shana. And then we went to Tum, which was again Michelle. Then Mairi was Rimi. And then Phir Dhoom was then Indrani came in. Yes, Indrani then Das Indrani Gupta came. did that one. And तो ये बस इंद्रानी याद है कि बाकियों की कैसे याद नहीं है. ये क्या पता scene है? एकदम से ना इंद्रानी का चेहरा मेरे सामने आ गया. वो तो वो चेहरा तेरे साथ बहुत साल रहा है कुछ. So yeah, I mean, and all of them have done well, you know. And then Vidya Balan. Vidya Balan was there, Vaishali Desai was there, then what's her name? Sharma. Evelyn Sharma was there. Evelyn Sharma. See you later. So all these guys got breaks from Euphoria only. Right. And then they moved on and did well. And मतलब मुझे किसी का थैंक यू नहीं चाहिए. हाँ बस मेरे बारे में कुछ बुरा मत बोलो. That's all. So who was your favorite co-star? All of them. But there's no favorite. You know. I'll tell you what. There's a joke about me, Pradeep Da, who did all our initial videos. Right. Pradeep Da used to say, तो इसको उनको आगे ना हर वीडियो के बाद कोई ना कोई बोलते हैं पॉली को इससे प्यार हो गया, कि पॉली को इससे प्यार हो गया. तो एक बार वो परेशान हुए, कहता है पॉली जैसे एक्टर है ना, उसके सामने गाय भी खड़ी कर दो ना तो उसको उससे भी प्यार हो जाएगा. Who's in love with Polly? Mom. So yeah, so that is a joke. I'm a professional. I'm here to work, and this is what it is. You know, I mean, forget about the actresses. My favorite was Pradeep Sarkar, because he gave us he taught me whatever I'm doing now. The kind of videos I'm making, the short films I'm making, it's all the stuff that Dada taught me, and I will always be grateful to him. Last year he passed away last year, and I was broken, completely broken. He's the most in the film world and the showbiz. He's the most important man for me. Right. After Dhoom Pichak came, it was raging like anything. Everybody was playing that on guitar. And why that song was a success? Because people could play that song on guitar. Yes. So after O Sanam, Daler Mehndi, you can't play on guitar. You can't play on anything. After O Sanam, after Lucky Ali, Euphoria came. They gave songs. That time Silk Route also came. Yes. They gave songs that you can play on guitar. Yes. These are the pop songs you can play on guitar, and everybody was enjoying that. Because songs were being made by me. Right. I'm a very basic level guitar player. So whatever I could play, obviously the world could play. And all Euphoria songs are composed on the guitar. We are, excepting maybe Tum. Tum is composed on the keyboard. Otherwise, everything is on the guitar. And that's why people, and plus, I mean, the way I sing, मैं बहुत सीधा गाने वाले हूँ. I'm not a classically trained guy, you know. I mean, I can't sing like, say, Sonu Nigam. I can sing like in a straight way, like all of us can sing. And that, I think that's why it connected. And plus, talking about something else, yeah, suddenly a guy in the 1998, that's circa, was singing about आगे जाने राम क्या होगा. कोई नहीं गा रहा था. कोई नहीं कर रहा था. कोई नहीं गा रहा था. तो मैं, I should take some kind of, commission from BJP, because I made Ram very popular back then. In 1998. 98. Yes. आगे जाने राम क्या होगा. And that was me. You know, I'm not a religious person. But हम लोग हमारे घर के, तुम्हारे भी घर में, मतलब ये नहीं है कि तुम हर दिन बैठ के पूजा पाठ करोगे. But Ram, talking about Krishna, talking about Shiva, talking about Durga, it is always there. हम सबके घरों में होता है.
because I come from a Christian school background, I used to know about Jesus Christ also and a lot about Jesus Christ. और मेरे घर में ये नहीं था कि इसकी पूजा करो और उसके बारे में नहीं सोचो, ऐसा नहीं था. जबकि मैं बोल रहा हूँ मेरे माय नाना केम फ्रॉम अ पुरोहित फैमिली, बट ही सेड नहीं यार, है तो एक ही, तुमने जो नाम फॉलो करना कर लो, राइट. है तो एक ही. आई वाज टॉकिंग टू प्रशांत ने बोला कि यार हम लोग बैठे हुए थे, ऐसी बात चल रही थी, हम ऐसी बीट कुछ बनाया, कुछ और रिकॉर्डिंग चल रही थी, कुछ और बात हो रही थी, तो यू सेड कि यार ये बीट अच्छी है, इस पे कुछ करते हैं. आपने कुछ गाना बनाया एंड वो मायरी बन गया. नहीं ऐसा, दिस इज नॉट द राइट स्टोरी. आई विल टेल यू, मायरी वाज रिटन व्हेन आई वाज स्लीपिंग एट नाइट. अच्छा. दिन के सुबह के कोई 3-3:30 बजे थे और मेरे दिमाग में एक ट्यून चल रही थी और मैं उठा और वो ये ट्यून थी. I called up Jaideep Sani. Jaideep Sani, you know who Jaideep Sani? He's not the, he was a creative director with YRF. I called him. I said, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था. मैं कहा जयदीप, मेरे दिमाग में ना ये गाना आ रहा है. कहता गाना तो बहुत अच्छा है. तो क्या है, मतलब मैं कहा मुझे बाकी चीज़ें पता नहीं है. लाइन के एंड में मैं बोल रहा हूँ मायरी. तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो he wrote a song about a soldier dying in the battlefield. और मैंने उसको सुना, मैं कहा ये बहुत ज़्यादा दुखी, इट्स वेरी वेरी सैड. इतना सैड नहीं है, इट इज़ आई एम ट्राइंग टू टेल माई मदर अबाउट अ गर्ल आई लव एंड हैव लॉस्ट. तो ही सेड ओके फाइन. देन ही स्टार्टेड राइटिंग, ही रोट द सॉन्ग एंड मायरी वाज डन एंड देन बेसिकली ही रोट द पंजाबी पार्ट्स, आई रोट द हिंदी पार्ट्स. You wrote it? Yeah. Okay. The Hindi parts I wrote, the Punjabi parts were written by Jaideep. देख यार, जिंदगी में कोई भी चीज़ हमेशा कोलैबोरेशन होती है. हाँ, राइट. जैसे यूफोरिया के अंदर भी, जैसे मैंने गाना बना दिया, बट लाइक फॉर एग्जांपल इस गाने के अंदर जो गिटार का भी प्लग था वो मैंने बनाया था. अदरवाइज गिटार प्लेयर अपना काम करता है, बाकी लोग. द प्रॉब्लम वाज विद मायरी, आई वाज वेरी श्योर कि इसके अंदर सीधे ढोलकी का ठेका होना चाहिए, कि ये तो ड्रम्स में हो नहीं सकता यार. तो हमारे पास तो ड्रमर था. तो देन वी वेंट टू अ स्टूडियो एंड आई सेड यार कोई जो रिकॉर्डिस्ट थे वहाँ पर, मैंने उनको बोला कि जो अच्छा तबला ढोलक बजाते हैं उनको बुलाओ. तो उनके अंदर भी मैंने तबला नहीं बोला था, मैंने सिर्फ ढोलक बोला था. मेरे दिमाग में ढोलक ही चल रहा था. मुझे नहीं पता था तबला और ढोलक साथ ही बजते इन रिकॉर्डिंग्स. राइट. तो देन दैट रिकॉर्डिस्ट ही कॉल्ड अप प्रशांत एंड राकेश, हु आर वेरी यंग बॉयज एट दैट टाइम. So they came in. So they were professional guys, you know. They're like Prashant has been playing since the time he was 12. Rakesh has been playing since the time he was 14. तो उन्होंने आगे पूछा मुझे कि आप बताइए. मैं कहा देखो यार, मेरी कोई इतनी हिंदुस्तानी में कोई इतनी वो नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट आई वुड वांट एक जो जैसा सीधा एक ठेका होता है वो बजा. बिकॉज मेरे माय काका यूज्ड टू प्ले द तबला आल्सो. तो मैंने कहा सीधा ठेका. देन दे मेड द बीट एंड आई विल ऑलवेज से दिस तुहिन, उस बीट ने उस गाने को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया. राइट. वो जो बीट है वो हिंदुस्तानियों को सबको समझ आती है, और उस बीट की वजह से उस गाने के अंदर एक सोल है, you know. Right after there's a further story. Right after the recording, I asked Prashant के यार, because मैंने देखा दोनों, राकेश प्रशांत को देखा, मैं कहा यार I can afford one guy. So I asked Prashant. Prashant is unbelievable. So I asked him कि यार will you join? उसने मना कर दिया. कहता नहीं मैं बैंड में क्या बजाऊंगा, मैं तो हिंदुस्तानी बजाता हूँ, क्लासिक बजाता हूँ, बैंड के साथ क्या बजाऊंगा. मैं कहा देख प्रशांत, और उससे ये भी मुझे बोला कि अगर मैं बजाऊंगा तो राकेश भी बजाएगा, तो अगर तुम ले रहे हो तो दोनों को लेना पड़ेगा. आई सॉ अ ग्रेटनेस ऑफ अ मैन. दुनिया में कौन है तू इनको किसी और को रिकमेंड करता. राइट. एंड ही वाज अ यंग बॉय. अब से मतलब 25-26 साल पहले, 25 साल पहले प्रशांत वाज जस्ट 22 साल का लड़का. सो वेरी सिद्ध. और मैं फॉरगेट अबाउट हिज तबला प्लेइंग, आई स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग द मैन. कि देखो इतनी बड़ी बात बोली यार, कोई किसी की मदद नहीं करता. And you were also going through a lot of changes in the band that time. Correct. People were leaving, people were coming, and it was happening very frequently. Very simultaneously. And so I told her, as soon as I took Prashant and Rakesh in, तो बाकी लोग जो बचे हुए थे वो उनको भी खुंदे चढ़ गई कि अब हम तो हमें पैसा तो शेयर करना पड़ेगा, बिकॉज मैं सबको इक्वल पैसा देता हूँ. सो अब तो पैसा शेयर करना पड़ेगा. मैं वैसे नहीं सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि भाई बैंड विल साउंड बेटर. एंड दीज आर रियली टैलेंटेड पीपल, यू नो. बट जो भी है, 2000 में हमारी जर्नी शुरू होगी. टचवुड अभी भी चल रही है. तो एक गाना कैसे बनता है? What is the journey of a song? सो बस हमारे बैंड में ऐसे बनता है. आई मेक द सॉन्ग, अ बेसिक ऑफ द सॉन्ग, एंड आई सिंग इट टू एवरीबडी एल्स. दे विल ऑल डिसाइड कि वेदर दिस साउंड्स गुड, इज इट वर्थ वर्किंग ऑन, एंड देन एवरीबडी स्टार्ट्स वर्किंग ऑन देयर ओन पार्ट्स. एंड देन दीक्षांत एंड आई राइट
or Dahlia, my sister, she and I write. So I always write something, but I always give it to the other person because अगर तुम ही लिखते रहोगे तो फिर तुम बोरिंग कुछ ना कुछ बोरिंग लिखोगे, वर्ड्स रिपीट करोगे, आइडियाज रिपीट करोगे. एंड तुम्हें मेरा जो सबसे बड़ा प्राइड है यूफोरिया के साथ कि हम लोग ना आइडियाज रिपीट नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल पूरी दुनिया मुझे बोलती रहती है कि एक और मायरी बनाओ. मैं क्यों बनाऊँ? एक बन तो गया, अब मैं कुछ और बनाऊंगा. क्या आइडिया रिपीट नहीं करते? आज तक लड़की मिली है? हाँ, एक वीडियो में मिली है. वो तूने ही मुझे बताया था कि तुम्हें आपको कोई लड़की नहीं मिली. एक लड़की नहीं, बहुत सारी लड़कियां मिली हैं आपको फिर एंड में. वो भड़ास निकल रहा था. But yeah, I think going abroad and shooting was one of the best experiences of my life. People are so uncomplicated यार. मतलब तुम कहीं खड़े होकर शूट कर लो, they will not even look into the camera. यहाँ पे होता है ना कोई पहुंच जाता है, नहीं है. और सबके सब प्रोफेशनल हैं, देखने में कमाल के हैं. मतलब यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट कि यार इज शी ओवरवेट और शी डोंट हैव द राइट मेकअप और द राइट क्लोथ्स. दे आर ऑल ड्रेस्ड एंड स्टाइल्ड परफेक्टली यार. सो इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ. तो अभी इस कहानी पे आओ वापस. गाना कैसे बनता है? आपने गाना बनाया, So, लिरिक्स के लिए दे दिया, सबने अपने पार्ट्स बन के आ गए, बस उसको रिकॉर्डिंग. उसके बाद म्यूजिक कहाँ से आया? तो सबने बना दिया ना, सारे बैंड मेंबर्स ने. हाँ, हमारे यहाँ पे तो सब कुछ लाइव ही है ना. तो क्या है मतलब आपने लिरिक्स बनाया तो पहले लिरिक्स बनी? नहीं, पहले म्यूजिक ट्यून बनी, पहले ट्यून बनी, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ लिरिक्स बन गए. हाँ, फिर आपने लिरिक्स लिखी. एक बार में लिख लेते हो सारी? अगेन एज आई सेड कि मेरे साथ साइमल्टेनियस नो ब्रो, एक बार में नहीं होता ये प्रोसेस ही 15-20 दिन का है. ठीक है, तो आपने ट्यून बनाई, उसके बाद आपने लिरिक्स बनाई, उसको फाइन ट्यून किया जो भी करना है, और फिर उसको रिकॉर्ड किया. करेक्ट. ओके. सो दिस इज द प्लान. उसके बाद उसकी मिक्सिंग हुई, उसके बाद उसकी मास्टरिंग हुई, एंड देन व्हिच वाज द इजीएस्ट सॉन्ग यू हैव रिटन और मेड? एंड डन. दे कांट बी इजी टू हिम. दे पार्ट्स ऑफ मतलब योर जो लाइफ. बन गया. तो वो जो बनते हैं फिर वो ऐसे ही बनते हैं. ओके. बिकॉज मैं हर दिन बैठ के जैसे एक लोग बैठते हैं इस फिल्म के 6 गाने बनाने हैं, मैं तो ऐसा नहीं कर रहा ना. इंस्पिरेशन आई तो लिखा. फॉर एग्जाम्पल बाबरा, जो फॉरेन वाला है. खैर बाबरा में भी कोई लड़की नहीं मिली मुझे. आई डोंट नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. अरे इतनी सारी लड़कियां तो थी सबके साथ. बट वो सबके सब थी, बट कुछ हुआ नहीं. फिर कौन सा वीडियो था जिसमें आपको हीरोइन मिल गई थी एंड में? वो तो वही होगा ना, आना मेरी गली. विद्या बालन के साथ मेरी शादी हो जाती है लास्ट में. आना मेरी गली था नहीं, अभी एक और कोई था जिसमें आपको हीरोइन मिल जाती है. हाँ, जाने खुदा. जाने खुदा में. yes. बट जो पार्ट 2 आ रहा है उसमें नहीं मिली है. हे भगवान. हाँ. सबसे इजी तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि सबका एक, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगेन बावरा. मेरे दिमाग में जो वर्ड चल रहा था वो बावरा. बिकॉज क्या हुआ था, मेरी माँ ने मुझे एक बार बोला था ये बावरों जैसे बात करता है. मेरे लिए कि यार मतलब अब तो कोई सेंसिबल बात करे, बावरों जैसे बात करता है. तो दैट वर्ड केप्ट ऑन वर्क इन माई माइंड. फॉर एग्जाम्पल मायरी इज व्हाट वी कॉल आवर मदर्स इन जम्मू. धूम पिचक तो मैंने तो बस गाना बनाया था. वो गाना लिखा था डीजे के लिए. डीजे गॉट इन्वॉल्व विद अ गर्ल जिसके साथ उसकी शादी होने के कोई चांसेस नहीं थे. मतलब इट इज दैट स्टोरी दैट वे ही वेंट टू मीट द गर्ल्स फादर. ही सेड कि तू करता क्या? तो ही सेड बेस बजाता हूँ. ही सेड बड़ी अच्छी बात है, बट करता क्या है? सो बास गिटार. हाँ, बास गिटार. वो बास क्या होती है? तो डीजे ने बहुत अच्छा आंसर दिया था उसको कि सर बेस गिटार वो चीज़ होती है जो जब बजना बंद हो जाए ना तब समझ आता है वो चीज़ क्या है. सो इट्स अ वेरी बिग आंसर. एनीवे, सो वर्ड्स स्टे विद यू. फॉर एग्जाम्पल रोक सको तो रोक लो. इट्स लाइक एटीट्यूड. कैसे भूलेगी मेरा नाम, अगेन एटीट्यूड. क्या सो मायरी एंड कैसे भूलेगी मेरा नाम आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. एक तरफ बंदा रो रहा है और दूसरी तरफ कह रहा है यार तो निकलना, बट तू मुझे भूल पाएगी. एंड व्हिच इज बोथ थिंग्स आर ट्रूथ. दुनिया में कोई कितना भी बर्बाडो दिखा दे, वो मायरी वाली चीज आती है जब रोते हो तुम. और जो दूसरी साइड है वो भी सच्चाई है. बिकॉज इफ यू डोंट हैव दैट एटीट्यूड यू विल नेवर गेट ओवर. व्हाट इज योर बिगेस्ट मेमोरी ऑफ मायरी? Oh God! Performing at the different biggest levels. no. Biggest my memory is this. We used to say in अलकनंदा. हाँ. तो डुप्ले घर था. मैं नीचे ड्राइंग रूम में बैंड के साथ रिहर्स कर रहा था. माँ ऊपर थी. She had just come back from the hospital. तो हम लोग रिहर्स कर रहे हैं तो ऊपर से आवाज़ आई पॉली. तो मैं ऊपर गया. माँ ने कभी जिंदगी में मुझे पलाश नहीं बुलाया, कभी नहीं. माँ doesn't know I have a name like Palash. She only calls me Polly. Okay. When she's angry then she'll call me Palash. तो that is फिर वो खतरे की घंटियाँ.
And Papa, who named me Polly, never called me Polly. He Okay. always used to call me Palash. Palash. वो भी बंगाली तरीके से Palash. हाँ तो माँ ने बोला मैं Polly ऊपर आओ. मैं गया ऊपर, कहते हैं ये गाना बहुत अच्छा है. And it is the only time to him that she has said this about any song in 25 years. 25 साल में. I think that is the biggest moment for me, क्योंकि जिनके लिए मैंने लिखा उन्होंने appreciate किया. okay. When did you think that this has become an anthem? Never to him. Yeah, It's not- it's मैं आपको not, I बताऊँ, think. you being modest and all, but when other singers started singing your song I in think, front of you, I think that was the time when I felt that wow, this has reached somewhere. I mean, honestly, I started understanding that, you know, Euphoria has made a very, very big impression because, you know, again, as I'm saying, you meet people and their core memory is some song or the other. Mostly the core memory is Mairi because, see, heartbreak is a very universal thing. Right. तो मुझे तब समझ आ गया था कि यार मैंने कुछ कमाल की चीज़ लिख दी है कि लोगों को सालों बाद भी याद है. देन यू गो टू कॉन्सर्ट्स, 17-18 साल के बच्चे गा रहे हैं तो तुम्हें लगता है यहाँ. देन गाय लाइक अरिजीत इज सिंगिंग इट. सो देन यू अंडरस्टैंड कि यार दिस सॉन्ग हैज़ मेड अ वेरी वेरी बिग इंप्रेशन एंड दिस इज़ नॉट कमर्शलाइजेशन, इट इज़ लव, इट इज़ प्योर लव. और कहीं ना कहीं नो उस गाने में सच्चाई है एक. और तुझे ही पता है अगर एक गाने में सच्चाई होगी ना, इट विल लिव फॉर एवर. Right. Let's hear that song. Okay. बिंदिया लगाती तो कांपती थी पलकें मायरी, चुन्निया सजा के वो देती वादे कल के मायरी. मेरे हाथों में था उसका हाथ, थी चाशनी सी हर उसकी बात. मायरी आप ही हंस दी, मायरी आप ही रोंदी, मायरी याद वो मायरी गल्ला कर दी, मायरी अखा नाल लड़ दी, मायरी याद वो मायरी. अब क्या करूं कैसे कहूँ ए मायरी, अब क्या करूँ कैसे कहूँ ए मायरी. इसमें दो वर्जन है. एक तो वो है अब क्या कहूँ कैसे, that you do on stage. The other one which I loved was जो second stanza में आता है, देरिया हो जाए Yeah, तो वो तो bridge है ना. रोती हल्के So that's the second verse. मायरी. Yeah, so everybody has their parts. क्या नाम, सेकंड स्टार्ट कैसे होता है? बारिशों में लिपट के माँ आती थी वो चल के मायरी, देरियां हो जाए तो रोती हल्के हल्के मायरी. फिर से बेरो फिर वो गाए, ठंडी हवाएं बन के छाए मायरी. हीरो गाऊंगी मायरी, गिद्दे पाऊंगी मायरी, याद वो मायरी जन्नता लगदी मायरी, मन्नता मंगदी मायरी, याद वो मायरी. भूल गई मेरा प्यार माए, बस लगे महीने मायरी आयरी. Yeah, you know something, I just want to say this to you. गाने तो मैंने लिख दिए थे और ये कोई मतलब there are no real references to the song, but you know amazingly na Tuhin, the words of my songs with time have come to true. Yes. भूल गई मेरा प्यार मैं, बस लगे महीने चार मायरी, याद वो आयरी, याद वो आई मायरी, याद वो आई मायरी, याद वो आयरी.
मेरी, अब क्या करूं, कहाँ से कहूं, ए मायरी। इसमें वो वाला रेंडिशन काफी अच्छा है, वो होता है ना, बारिशों में लिपट के वहाँ आती थी वो चल के मायरी Correct. देरिया। You want, you know, all these are, वो मैं हर शो पे जब जाता हूँ, so then I do try to do something new every time, कि भाई कुछ नया मैं अपने लिए भी करूँ और जो सुनने वाला है उसके लिए भी करूँ। उसमें जब मैंने गाया ना तो मैं भी उसमें चला गया कि देरिया देरिया हाँ देरिया गोज अप देरिया। कहाँ गाते हो आप? अभी भी जो तुम्हें गा रहा हूँ ना, ये ओरिजिनल की से ऊपर है। ओके, वो तो नहीं हो पाएगा, काफी लोगों ने अलग अलग गाना ई फ्लैट में, ये मैं ई में गा रहा हूँ। ओके, वो काफी लोगों ने उसको टोन डाउन करके डी पे भी गाया, डी सी। इट इज अमेजिंग, अमेजिंग तुहिन लोगों को इस गाने से कितना प्यार है। मैं आई एम अमेज, मैं सालों से ये सोच रहता हूँ कि कैसे, यू नो। और ये मतलब मेरा जो फर्स्ट चॉइस था एक्चुअली ऑन द सेकंड एल्बम फिर दूंगा, कैसे भूलेगी मेरा नाम, मायरी, तो मैंने सोचा भी था इट्स अ वेरी रोंदू सॉन्ग यार, और मैं रोंदू बंदा हूँ नहीं। सो अब अचानक सालों के बाद अचानक समझ आया कि यार रोने में भी एक मजा है। सो मैं एकदम रोंदू नहीं है ये, इस अगर वैसे देखो तो ठीक है, इट्स अ वेरी नाइसली कंस्ट्रक्टेड सॉन्ग, पंजाबी भी है, हिंदी भी है, म्यूजिक अच्छा है, मेलोडी है इसके अंदर, और ये सब मिला के व्हेन यू कैन प्ले दिस ऑन गिटार, व्हेन पीपल स्टार्टेड प्लेइंग दिस ऑन गिटार दे वर लाइक वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। लेट मी जस्ट टेल यू तुहिन, दिस इज नॉट द गाय आई वाज 25 इयर्स अगो। आई वाज नॉट दिस गाय। मैं मतलब फॉर मी, मतलब बैठ के प्यार के लिए रोना और ये मेरे लिए कोई चीज़ थी नहीं। राइट, बट देन यू नो ये भी एक रियलिटी है, लॉट ऑफ पीपल डू इट, सो मे बी दे अंडरस्टूड इट मोर देन आई डिड। Right. आई अंडरस्टूड इट नाउ, आई डिडंट अंडरस्टैंड इट इन 2025 में मुझे बात समझ आई है। और पता नहीं, बट मैंने कैसे लिखा है मुझे नहीं पता है। तो आई विल से दिस अगेन कि देयर वाज अनदर फोर्स that was making me write this song, which is why the whole world sings it. what do you have to say about stardom and rifts? Because यूफोरिया बना, यूफोरिया सुपर हिट हुआ, चेहरा किसका आया? पॉली का आया, म्यूजिक सबने बनाया, and this happens in a lot of bands. The front man gets all the accolades, get all the attention, stardom उसको मिल जाती है, बैंड को नहीं मिलती। I think I should make this revelation today on your show. फर्स्ट ऑफ ऑल इस बैंड में दो ही लोग काम करते थे, वो मैं था और डीजे था, बट मैंने हमेशा अटेंशन सबको दी कि भाई, और ऑल्सो पैसा सबको इक्वली मिला। तो आप कोई भी यूफोरिया का आर्टिकल देख लो, इनिशियली ऑलवेज बैंड, ऑलवेज एवरीबॉडीज फेसेस, स्लोली दैट स्टार्टेड चेंजिंग, बिकॉज इवन द जर्नलिस्ट अंडरस्टूड कि सारी बात तो इसको पता है, लोगों को तो कहानी भी नहीं पता। लोगों को तो ये भी पता नहीं कि गाना कैसे बना है, इसके कॉर्ड्स क्या हैं, इसके लिरिक्स क्या हैं, क्योंकि और कोई काम करता नहीं था। उनसे हम काम करवाते थे कि अब जब गिटार प्लेयर है उसने आके गिटार तो बजानी पड़ेगी ना, वो डमरू तो नहीं बजाएगा ना, तो आप करो। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग व्हाई प्रशांत इज सो इंपॉर्टेंट टू दिस बैंड और राकेश इज सो इंपॉर्टेंट टू दिस बैंड, बिकॉज व्हेन दे केम इन देन आई स्टार्टेड फीलिंग देयर वर मोर पीपल बिसाइड्स मी एंड डीजे, अदरवाइज इट वाज ओनली डीजे ना। और वो चीज़ सबने देखना भी शुरू कर दिया, जर्नलिस्ट ने भी देखना शुरू कर दिया, शायद तूने भी देखा होगा, सबने देखा होगा यार ऐसा कैसे कि इनको ही बात पता चल रही है, ये बात कर पा रहे हैं, बाकी किसी को तो बात ही नहीं पता समझ आ रही। बट उनका ये फंडा था, हाँ तुम लोग काम करो बट अटेंशन हमें भी मिले। ऐसा नहीं होता। तो ऐसा हुआ, रिफ्ट्स हुई बिकॉज यू गॉट द स्टारडम? यस ऑफ कोर्स। क्या बोला लोगों ने? बहुत कुछ, वो मुंह पे कम बोलते हैं, मुंह के पीछे ज्यादा बोलते हैं। आई नो फॉर अ फैक्ट दैट पीपल डोंट वांट यू टू डू वेल। If they see you doing well, they try to pull you down, whichever way. Emotionally they pull you down, professionally pull you down, however they do. Which is why मैंने अपनी ज़िंदगी का ये रूल बना रखा है कि मैं तो सबको encourage ही करूँगा। You know about the fact that how many people have betrayed me. You know it, तुझे पता है। पर मैंने कभी उनके साथ against कुछ किया नहीं। मैंने ना उसके बारे में बात की, ना उनको नीचा करने की, नीचा दिखाने की कोशिश की। हाँ, मैं अपने भाई के साथ बात कर लूँगा बट उसके आगे नहीं करूँगा, और वो भी ऐसे भाई से बात करूँगा जो ये चीज़ अपने दिल में रखेगा। राइट। सो मैं बहुत क्लियर हूँ कि यार किसी का भी मजाक उड़ाना या किसी को नीचा दिखाना या किसी को बर्बाद, सो कॉल बर्बाद कर देना, इंसान का, इट इज़ नॉट आवर इन आवर हैंड्स।
ये जजमेंट करने वाला मैं कौन हूँ? पहले वो पत्थर मारा है जिसने कभी गलती नहीं की है। मैंने भी गलतियां करी थी होंगी, जरूर की होंगी। यस, मैंने किसी के साथ गलती नहीं की, किसी को दुख नहीं दिया। मैं तो अगेन एग्जांपल दूंगा, तुहिनांशु से मिलता हूँ, एक तो प्रशांत तो हमेशा तुहिनांशु बुलाता हूँ और मैं तो हमेशा तुहिन बुलाता हूँ। तो इतने साल हो गए, ऑफ कोर्स यू हैव फेस्ड प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ विद योर प्रोफेशन, मे बी पर्सनल प्रॉब्लम्स आल्सो। मैंने बस कभी तेरी शक्ल पे शिकन नहीं देखी है, यू नो। एंड उसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या? यू गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स। Yes. I know about that. You've got very strong parents. In my case, I was always strong. I was strong for, you know, I lost my father when I was very, very young. So, मेरी माँ का भी जो एक मेल फिगर है ज़िंदगी में, मैं वो हूँ। तो मैं टूट नहीं सकता। जितने भी लोग मेरे साथ काम करते हैं, मुझसे ज़िंदगी में कुछ लेकर गए, उनके लिए मैं कभी टूट नहीं सकता था। तो उन्होंने मुझे तोड़ने की कोशिश की। एंड आई एम अगेन सेइंग दैट वाज माय किस्मत, दैट वाज माय रोड, दैट वाज माय डेस्टिनी। आई एक्सेप्ट इट। It only made me stronger, better. नहीं, एक चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा आती है कि when I see the success ना, lot of successful people, तो मैं देखता हूँ उनका पास्ट क्या था। उनका पास्ट बहुत सैड था, बहुत वहाँ से आए थे। तो मैंने कहा यार मेरा कभी ऐसा पास्ट था नहीं, सैड नहीं था। तो क्या दैट इज़ द रीज़न वाई आई डिडंट रीच दैट लेवल? देन आई एम लाइक नो, I'm like, it's okay. Bro, Whatever. you've been working for how many years? You're one of the most recognized voices in this country. Success तो यही होती है, और क्या होती है? हाँ, so एक वो दिमाग में आता है कि यार उसके लिए वो ना जरूरी था, बट नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है। तू खुश इंसान है। Why do you think 2 years back I spoke to you? Because तू खुश इंसान है। तू हर चीज को एक खुशी से के पर्सपेक्टिव से देखता है, एंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि यार अब इसको ठीक करो। तो वैसा बंदा मिलना बहुत मुश्किल है। दैट इज योर सक्सेस ब्रो। योर सक्सेस इज पलाश सेन कन्फाइड्स इन यू। यस, जिसके अंदर सब लोग कन्फाइड करते हैं वो तेरे अंदर कन्फाइड करता है। मैंने क्या खोया है, मैंने क्या पाया है, वही जानता है। ये मेरी माँ को मैंने गाना सुनाया था। Bro, you're sounding बोला अक्षय कुमार than me. I just did a song with अक्षय कुमार. हाँ, महाकाल चलो. Yes, महाकाल We चलो। sounded like each other only. महाकाल चलो। एक सुर में था, एक नहीं था। Well, a lovely guy. मजा आ गया उसे. क्या था वो एक्सपीरियंस? मजा आ गया. मजा क्या आ किया गया उसमें? The guy is committed to whatever he does. उसको पता है कि उसके गले में सुर नहीं है, but वो मेहनत करता है। और मतलब प्रिपरेशन, शिव जी में इतना आस्था, मुझे उस बंदे से मिलके मजा आ गया। एंड सच अ हार्ड वर्किंग मैन है वो। सुबह उसे कुछ काम किया, दोपहर को कुछ करने वाला था, शाम को कुछ करने वाला था। एंड ऑन टाइम, स्पॉन्टेनियस, वेरी वेरी वार्म। मतलब मैं उससे पहली बार जिंदगी में मिला है, बट द गाय वाज सो वार्म। मजा आ गया उससे मिलकर। इट वाज, हाँ जी, क्या हाल है? हाँ, आई एम ओके। ब्रो, यू आर द ओनली गाय इन द वर्ल्ड who mimics me. Really? I'm telling you, you're the only guy. मतलब लोग, बाकी लोग तो करते ही है ना, ऋतिक रोशन ये वो, बट मुझे कोई नहीं मिमिक करता तो ये छोड़ के। Amazing है। मेरे को मिला था प्रशांत, मैंने कहा क्या किया दादा ने? मैंने क्या खोया है, मैंने क्या पाया है? I never question your success. Your success is the fact that you're a good man, you're a happy man, you're an honest man. तू यारों का यार है। And see, people ना always treat all these things with, मतलब ये क्या है? मतलब अगर किसी ने बहुत पैसा कमा लिया, दैट्स सक्सेस। अगर किसी ने बहुत नाम कमा लिया, दैट्स सक्सेस। नो, इट इज नॉट। इवेंचुअली कोई भी सक्सेस नहीं रहता ना यार। ना पैसा रहता है, राइट, ना जवानी रहती है, ना फेम रहता है। यार हमने तो सबने वहीं पहुंचना है। राइट। कुछ जल्दी पहुंच जाएंगे, कुछ बाद में पहुंचेंगे, बट पहुंचना तो वही है। वाह, पहुंचना तो वही है। गाने का हुक मिल गया, आगे बनाएंगे। पहुंचना तो वही है। बट ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट सॉन्ग्स, आपने फन गाने बनाए, देन देयर आर सैड सॉन्ग्स आल्सो, एंड देन देयर इज अ सॉन्ग अब ना जा। अब ना जा had really high notes, emotional Abna Ja notes, was the reunion. but then तुम shattered everyone. Yeah. See, all these songs, I will just tell you, I think the most significant songs that I have written, Euphoria's performed, of course, धूम पिचक है, मायरी है, कैसे भूलेगी मेरा नाम है। बट मैं तो ये बताऊँ, आफ्टर मायरी मेरे जो 2 गाने जो लोग, दुनिया जिनको लिटरली पूछती है, वन इज़ अपना जा, वन इज़ महफूज। महफूज, how many times people are crying in the audience, you know, whichever show I sing it, people are crying. अपना जा, people are waiting. वो मतलब पहले all the talk is मायरी मायरी मायरी, एक बार मायरी हो गया, अब ना जा, अब तो अब ना जा कर ही दो।
Again, as I'm saying, bro, it is not me. It is another blessing. ये चीजें हम लोग इंसान, we are too ordinary to do all these. But you know, you're bringing different flavor to Yes. it. But then satirical song आपने बनाया. You made Item, you made Sale, you made Jeene Do. Yes. Then came Gumsum. Yes. And Halla Bol, of course. See, this is a proper euphorian. इसको ये सारे गाने पता है. 99.99% को सिर्फ मायरी पता है. No, so these are the songs जहाँ मजा भी ले रहे हो आप और जहाँ आप एक सटायर भी दे रहे हो. Like Tuhin, I have a comment on society. I have a comment. अभी जो I'm going to do this. I don't know when are you telecasting this interview, but there's a song which ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, गुरुदत्त जी की फिल्म थी प्यासा. I have loved this song always, and I can't make a better song than this. तो मैं इसका कवर कर रहा हूँ, जो कि मैंने इसके पहले किसी की मुस्कुराहट किया. So there is a concept which is there, that's in advertising also, that's in probably music and movies also. It's called nostalgia. Yeah. कि we are in now, but we want the old stuff. Correct. We are sick of the new stuff because Absolutely. there's nothing new which is coming. Absolutely. There's something called nostalgia. That's it's a real thing, and I think I mean I would say this, that people look at Euphoria from that perspective also, कि जो कि मतलब started off in 98, it is 2025, but the song sounds relevant. Right. Because as I said, an honest song will always be relevant. Again, maybe this sounds like a very sad song कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, but कितना relevant है. Right. पूरी दुनिया को देख लो ना, अमेरिका लड़ रहा है, ईरान लड़ रहा है, इजराइल लड़ रहा है, यूक्रेन लड़ रहा है, सब लोग लड़ रहे हैं ना. अपने देश को देख लो, वन स्टेट कांट स्टैंड द अदर स्टेट, अंदर स्टेट से लड़ाई कर रहे हैं. तो ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, क्या हो जाएगा. तो दैट्स द वे. आई मीन इफ यू आर हैप्पी इन योर हार्ट, दैट सक्सेस, एंड दैट तुहिन इज ऑन योर फेस. Right. तो ये देख के मैं ये कहूँगा, तुहिन इज अ सक्सेसफुल मैन, ही लुक्स हैप्पी. When did you think or realized कि the era has changed or the era is changing? When so this is a real thing. I'm going to say this on camera. T-Series signed up 88 or 89 artists in this country. This is I think around 2003, 2002, 2003. And then they didn't take out anybody's album. अच्छा. किसी भी album नहीं, including us. हमारे साथ तो there was a court case, but with everybody else, nobody went against them. So eventually, all the singers got, imbibed or absorbed into the film industry. Because that the whole thing was कि only अब film के गाने बनेंगे, independent गाने नहीं बनेंगे. So approximately say about 2006, 2007 के बाद सब कुछ ही change हो गया. Everything became film. All music that you heard was film. Actors became the main, like for example, Daler Mehndi was a bigger star than Bachchan Saab at that time, during the independent music time. But उसके बाद सब कुछ change हो गया, and slowly I saw that only very very strong people, who जिनके अंदर शायद इतना greed नहीं थी, लालच नहीं था, who didn't, for example, I didn't go into the film industry to make money through singing. Yes, I was invited. I went and did a film called Filhal, and but I've not done much playback singing. And my thought was always that only कि यार गाना बनाना है तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए. तुम्हारा क्या मन है? अदरवाइज तुम बैठ के ऐसा गाना बना रहे हो दैट इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट somebody else's life, somebody else's perspective, and somebody else's vision. I am a songwriter, yaar. I write about my vision, or somebody I know his vision. But don't you think it is you being really really hard on that? Because see, अगर playback singer है, अगर playback singing है, तो वहाँ पे आपको दूसरे का भी गाना गाना है, वहाँ पे आपको अपना भी गाना गाना है. वहाँ अगर किशोर कुमार ने गाना गाया तो वो he got into one song, he sang that song in his own flavor. Because Kishore Kumar ji was not a composer. See, अभी तो इंटरव्यू कर रहे हैं. हाँ. You could be sitting in a so-called radio station हाँ. and mouthing words told to you by producer. Right. कि इसको हमने इनवाइट किया है, हाँ. इसकी आप तारीफ कर दो. वो Right. कोई भी होगा. Right. और फिर तेरा इस तरह का शो है जहाँ पे तेरी जो मर्जी है वो कर रहा है. तो मैं दोनों कर रहा हूँ ना. नहीं, बट मैं प्रेफर ये करता हूँ. वो आपके ऊपर है फिर. You being hard on No, I'm not the being hard. industry. I'm not being hard. मैंने चॉइस भी बनाई जिंदगी में. मैं डॉक्टर हूँ यार. इतनी तो अकल है कि मैं क्या कर रहा हूँ यार.
आई मीन आई ऐसा नहीं है कि मैं फिल्म का की जगत को नहीं जानता हूँ, आई नो देम वेरी वेरी वेल ऑल्सो, बट मोस्टली वहाँ का सीन इतना अच्छा नहीं है। तो हमें वही ना, वो बाहर से सब कुछ जगमगाता हुआ लगता है। एक एक गाना जो कि हिंदुस्तान में बनता है, एक एक गाना कम से कम 14-15 लोग गाते हैं, राइट। बट पीपल डोंट नो अबाउट इट। ये नहीं है कि सिर्फ एक ने गाया और एक्सेप्ट हो गया। बट आई टेल यू, आपके ज़माने में, मतलब व्हेन यू केम, मोहित चौहान वाज आल्सो देयर, Yeah. लकी अली वाज आल्सो देयर, Yes. दे वेंट टू बॉलीवुड। Yes. मोहित चौहान saw greater success coming from an indie band and sang a lot of beautiful songs. Yeah, absolutely. But that was his choice. Huh. In my case, my choice is that once I walk into that place, I become a slave. I'm being told what to do. वो इतने सारे गाने अकेले तो नहीं तो गए थे वो ना। तो आपका पर्सनल पर्सपेक्टिव है जिसकी क्योंकि वजह से हुआ है। यार जब मुझे पता है तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि बॉलीवुड ने बोला कि बाहर निकलो, मेरे को नहीं नहीं नहीं, बाहर निकलने की बात है, ऑफ कोर्स हुआ है। I have done songs that was not that people just needed to hear how I was going to sing it, and then somebody else came and sang it. ओके, सो तो ये बात सच है। So I'm coming to the Bollywood career. You sang in Bollywood as well. There is Dil Ke Sannate, which That was in from Filhal. Filhal. मैं कौन हूँ, that was in Which is Lamha. again because a guy like Mithun knows how to respect. Right. उसको पता है कि अगर मैं इसको बुला रहा हूँ तो मैं इससे गवा रहा हूँ, मैं वो नहीं ऑप्शन नहीं चूज कर रहा हूँ। वो बहुत अलग चीज होती है। तो हाँ, so then you can choose the music. इट इज लाइक somebody calls you to host a show, says कि तू ना बॉडी लिख दे बट बोलेगा कोई और। तो मैं कहूँगा बॉडी लिखने के पैसे दे दे। एग्जैक्टली, बट देन तू इसको कमर्शियल वे से देख रहा है। हाँ। मैं नहीं देख रहा ना, मैं तो रूहानी तरीके से देख रहा हूँ। मैं अब अ गाय हु कैन मेक सॉन्ग्स लाइक महफूज और अपना जान मायरी, वो बंदा कुछ और ही सोचता होगा ना। Okay, then there is music बंद ना करो, हम तुम और शबाना में था। There is सलमा, ढूंढते रह जाओगे। Again, हे या ऐसा ये अगेन जहाँ। फॉर एग्जांपल सलमा जब गाया था, इट वाज साजिद एंड वाजिद। वाजिद वाज वेरी वेरी डियर टू मी, मैं बहुत क्लोज था। ही सेड भाई आपका स्टाइल चाहिए, जबकि गाना मुझे पता था कि मैं क्या बोलूँ। Do you think your voice is for Bollywood? आई डोंट थिंक सो। हाँ। मैं हमेशा जो यही बोलता हूँ, आई एम अ प्ले फ्रंट गाय यार, आई एम नॉट अ प्ले बैक गाय। एंड माय वॉइस समहाउ पीपल नो इट सो क्लियरली दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू एक्सेप्ट इट ऑन समबडी एल्सेस फेस। They know my voice very. अब जैसे अब now Lucky भाई also is not doing any film work. Like, such a significant voice. वो मतलब अच्छी है बुरी है कैसी है, like Adnan. Again the voice, it's different. It cannot suit. Only those people जिनकी आवाज, अब जैसे देख लेना, this is the next person who's going to have this problem is going to be Arijit. Because no, Arijit has become Arijit. He has a persona. The voice has its own persona. Singing on somebody else's face doesn't work. But he has a Bollywood voice. He has Yeah, a very soothing, very soothing good voice. और वो स्लो भी गाता है, वो फास्ट भी गाता है, ऊंचे भी, फन भी गाता है। It's a beautiful voice. It's one of the best voices that's come out. Right. In fact, जितने भी लोग गा रहे हैं इस समय, चाहे जुबिन हो या they all have got great voices, but it's more easier for their voices to be stuck on people's faces. Number one. Number two, also that's a decision taken by a very very important part, the label, and you know I have a problem with the label. तो वो मेरी चॉइस ही थी. वॉकिंग आउट ऑफ द सिचुएशन वाज नॉट माय चॉइस. फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज एनफोर्स्ड एंड देन आई अंडरस्टूड कि मे बी मेरे लिए ये बेटर है. So you अगर मैं फिल्मों में चला जाता और बहुत सारे गाने गाता ना, तो मेरी वॉइस की एक्सक्लूसिविटी भी खत्म हो जाती. ये भी सोचो. अभी भी मतलब आई एम गेटिंग कॉन्सर्ट्स ऑन बेस ऑफ यूफोरिया सॉन्ग्स ना. खत्म. What is your thing on collaboration? You have collaborated in Tamil, Bengali, all these music. So what? I think collaborations are great. I mean, what we are doing today is a collaboration. Right. Yeah, you. I mean, there's so much I'm learning from you. You're learning from me, and this is a collaboration, and that is the way of the future. I really What was believe. your best collaboration? I think our most successful collaboration Strings. Right. Yeah, they were. I'm very fond of the boys. I'm very fond of both Bilal and Faisal. I'm very heartbroken that they have broken up. I hope they come back and start performing together. वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं. So that is, I think, the most, but then there's stuff that in the future that you will hear. Shalmali के साथ collaboration है. Shreya Ghoshal के साथ you collaborated. We collaborated with her. Now in the new album, Madhuvanti is singing. But there's so many people that I would love to sing with. But my dream collaboration is Beyonce.
कि अगर एक दिन आए कि हिंदुस्तान से यूफोरिया गाए, अमेरिका से बियॉन्से गाए और वो गाना बने. What is nepotism according to you? Oh, this is a question should be asked to Kinshuk. Yes. I just know, bro, that in my case, with Kinshuk, for example, now, whatever he has done on the basis of his merit. I believe that. I've made 2 films with him because he's a damn good actor. But then he's also got a film in Hollywood. And he has a starring role in Aditya Chopra's Dilwale Dulhaniya Le Jayenge, उसका English version. तो मुझे ये पता है कि इस बंदे को मैं ही नहीं अच्छी तरह से देख रहा हूँ, बाकी लोग भी अच्छी तरह से देख रहे हैं. अगर मैं ही अच्छी तरह से देख रहा होता और मैं ही उसको पुश कर रहा होता और मैं ही सपोर्ट कर रहा होता, फिर वो नेपोटिज्म. He looks like a miniature version of you. He sounds like you, looks like you. ठीक है, but yeah, I mean, but he's not me. So he's not me. He's an individual. Like for example, he has chosen that वो musicals के साथ अपनी जिंदगी आगे करेगा. He's already done the biggest musical any Indian guy has ever done, and when he's getting such reviews. See, अब उसके बाद तुम क्या बोलोगे? और this is what he wanted. He wanted to be known as himself. But तुम इंडिया में जैसे ही कोई भी आर्टिकल निकालोगे उसमें पलाश सेन का बेटा जरूर आएगा. But that is not the way. I mean, if you are liking what he is doing, that cannot be nepotism. दूसरी बात पता क्या है कि nepotism की जो ये बात आ रही है, in a lot of ways it is unfair. For example, अगर देखा जाए तो शाहिद कपूर भी तो nepotism है, रणबीर कपूर भी nepotism है, but they are phenomenal actors. Okay, nepotism में होता है कि you get a chance, of course. But then you have to prove it to the world that you are good or you are not. Absolutely. So वो that chance has been given by somebody else. It was not me. Because Hollywood accepted him, then I'm using him for a short film. मतलब आप डॉक्टर बन गए, आप हॉस्पिटल में तो बैठ गए, लेकिन अगर आप ट्रीट ही नहीं कर पा रहे तो आप किस अगर अपने घर वालों को ही ट्रीट करोगे तो फिर गड़बड़ है. अरे अभी he is speaking Hindi, Punjabi and English. अच्छा. और मैं अभी when I went to see his play, so I met the whole everybody. Vishal was there, Shekhar was there, Adi was there, and Rani was there. But they are speaking to me about my son with such glowing praises. मतलब उससे अच्छा मुझे कभी लगा नहीं है जिंदगी में. मतलब लोगों ने मेरी भी तारीफ की है, बट किंशुक की तारीफ सुन के मुझे और अच्छा लगा कि यार देखो यार, द बॉय इज वर्किंग एंड द जनता लाइक ही यूज्ड टू कम ऑन स्टेज और जनता पागल हो रही है, चिल्ला रही है, ताली मार रही है, और उसके बीच में मैं भी ताली मार रहा हूँ और मैं भी चिल्ला रहा हूँ. अब इससे ज़्यादा क्या करूँ मैं बताऊँगा तुझे. अमेजिंग experience for me. And then people know that he's a graduate in cognitive sciences also. मतलब न्यूरो साइंसेस का रखी है लड़के ने, from UCLA, जिसके बारे में हम लोग सब सुनते हैं. All this on his own. I mean, this cannot be nepotism. पढ़ाई लिखाई तो cannot be nepotism. तुम्हें जो भी करना है कर लो. Right. And then Delhi government supported you a lot over the years. मैं अभी भी दिल्ली का बंदा हूँ. I think the government understands that कि suddenly I am the face and the voice of the city. And Sheila ji asked me to make the song for Commonwealth Games also. And Arvind Kejriwal and his entire government asked me to, do so many shows and this and that. But I think they were also doing that because एक तो यार performance भी अच्छी है, और दूसरी the fact that we are the voice, we are the face of Delhi. I saw there's a museum in Bangalore. तो उसके अंदर बैंड्स के बारे में बात की है. तो जहाँ पे दिल्ली लिखा हुआ उसके ऊपर इतना बड़ा यूफोरिया लगा रखा है. मतलब I think this entire country accept, like for example, Rahman is always in Chennai. He is not moved out of Chennai. तो अगर देखा जाए तो उसका वो घर है. तो मैंने भी अपना कभी घर नहीं छोड़ा. बाकी जितने भी दिल्ली वाले आर्टिस्ट थे, they've all shifted to Bombay. I'm the only one who didn't. Can you sing the song? ये शहर मेरी जान. मैं गिटार से नहीं गाऊंगा, ऐसे ही गाऊंगा. गिटार पर डीजे बजाता है. ये शहर मेरी जान, इसका नाम है मेरी पहचान, मेरी सांसों में बसा इस हवा का नशा, मेरा दिल मेरा पता मेरी शान. दिल्ली है मेरी जान, दिल्ली है मेरी जान. Got goosebumps. And this can be fitted into any city. Bengaluru hai
मेरी जान मुंबई है मेरी जान। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अगर कोई और शहर मुझे बुलाएगा वहां पे जाके उस शहर का नाम डाल देंगे। हाँ तो क्या बढ़िया गाना है ये। बट वो इट बिकेम सो फेमस विद दिल्ली। इट केम इन धूम, इट केम इन द फर्स्ट एल्बम, या एंड फर्स्ट एल्बम अच्छा नौती बड़ी मजेदार बता दो, द फर्स्ट सॉन्ग ऑन द एल्बम यू हैड टू बी वाज सपोज्ड टू बी दिल्ली। अच्छा I wanted to launch with Delhi. ओके And then Dhoom Pachak came from somewhere. ओके And मतलब धूम पिचक को मैं खुद ही सोचा था मैंने ऐसे गाना कैसे बना दिया भाई। गाना बड़ा अच्छा बना था, एंड इट वाज समथिंग डिफरेंट, समथिंग रिफ्रेशिंग, एंड दैट सॉन्ग इज एवर रिफ्रेशिंग। अरे वाराणसी यार, बनारस के शॉट। और उस वीडियो की वजह से दुनिया जाके उस वहां पे शूट कर रही है। किसी बनारस कोई नहीं देखता था, इट वाज अरे गंदी जगह है, पंडों की जगह है, ठगों की जगह है। अब दुनिया को देखो, क्या बाहर के क्रूज, क्या इंडिया के क्रूज, एवरीबडी इज गोइंग एंड शूटिंग इन बनारस। आई विल टेक क्रेडिट फॉर दैट। एंड देन नाउ यू मेड 2 शॉर्ट फिल्म्स, थ्री ना, तीसरी कौन सी है? गुजल। द फर्स्ट सॉन्ग ऑन द एल्बम यू हैड टू बी वाज सपोज्ड टू बी दिल्ली। अच्छा I wanted to launch with Delhi. ओके And then धूम पिचक came from somewhere. ओके And मतलब धूम पिचक को मैं खुद ही सोचा था मैंने ऐसे गाना कैसे बना दिया भाई। और अगर दूसरों को ट्राई नहीं किया, अब क्या करें? रोल मांगे जा रहे हैं लोग, आप ऑडिशन भी नहीं लेते, अब क्या करें? आपके पास रोल आने वाला है, आपको पता नहीं है, बट वो मेरी फिल्म में आएगा, फीचर में आएगा। वो मैं सुन रहा हूँ पिछले 10 साल से। 10 साल पहले तो मैं बनाना भी नहीं था यार। I featured in one of your videos and I think it's for 30 microseconds. Which one? वो लॉकडाउन के वक्त आई थी, सब ऐसे प्ले कार्ड लेके खड़े हुए थे, तो मेरे पास कॉल आता है, कोविड ऐसे करके भेज देना। मैं भेज दिया, मैं हूँ कहाँ, रुको मैं वापस आता हूँ। तो उस लेवल पे आने के लिए मुझे आधा घंटा लगा कि मैं हूँ कहाँ पे। ब्रो ये पूरे उसमें वीडियो में देवर एटलीस्ट 50-60 लोग थे। हाँ। और बट ये याद रख, जब यहाँ इस देश में एक आरजे की बात आई, ओनली वन वाज फीचर्ड, इट वाज यू कहाँ पे? इन दैट वीडियो। हाँ तो वो वीडियो इतने उसका है सेकंड का, तो क्या किया जाए, आई वाज ट्राइंग टू फीचर ऑल माय फ्रेंड्स। बट तेरे पास एक्टिंग जॉब तो आएगा 100%। ये तो मैं कैमरा में बोल रहा हूँ, मैं अगले ऐसे कह रहा इंटरव्यू हूँ, में पूछना। मैं किंशुक के बाप का रोल कर लूंगा। किंशुक का बाप तो मैं हूँ यार। अरे तो आप क्यों अभी आपने एक और वीडियो शूट किया है, You look too सफेद young. कपड़े पहन के। You look too young for Kinshuk's father. You're too मैं young. दाढ़ी सफेद कर लूंगा उसमें। उससे भी कुछ नहीं होगा, शक्ल तो जवान ही है ना, क्या करेगा? आप तो भाई लगोगे उसके, आप क्या करोगे? तू छोटा भाई लगेगा। तभी तो मैं किसी भी वीडियो में उसके साथ नहीं हूँ। सुबीर मलिक को लेकर आ रहे हो, Which is this one ना, ये दुनिया अगर मिल भी जाए। हाँ। सुबीर is playing a corrupt lawyer. हाँ वो दिखता भी कलरफुल मूंछों के साथ। But see, that is also the goodwill that I have earned. कि मैंने सुबीर को फोन किया, वो उससे मुझे डिस्कस भी नहीं किया, वो बस आ गया और आके उसने रोल कर दिया। बट आई वॉज वॉचिंग एक तरफा एंड जिया जाए तो एक छोटे में ही आपने बता दिया कि मतलब दोस्त में क्या होता है, एंड ऑफ कोर्स कश्मीर में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। एक तरफा तो ऑफ कोर्स अबाउट एक तरफा प्यार। करेक्ट। व्हाट आर द 3 songs you think that changed Euphoria? फर्स्ट ऑफ ऑल धूम पिचक नहीं होता तो कुछ नहीं होता। हाँ सेकंड ऑफ कोर्स मायरी यार, मायरी तो मैंने बोला इट्स सो एंड थर्ड? दैट्स व्हाट आई हैव टू थिंक। आई थिंक हल्ला बोल, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट मैंने एंटी गवर्नमेंट अपने आवाज़ उठाई थी, और जो इस देश में होता है करप्शन और ये वो यू नो पीपल। Halla Bol was a stronger version, the lighter version was Sail. Absolutely. That everything is on Sale is more tongue in cheek. हाँ हल्ला बोल was डायरेक्ट कि यार, बिकॉज उस समय वो JNU का वो हल्ला बोल बहुत चलता था, और मुझे लग रहा था कि यार तुम एक अच्छी बात को यू यूजिंग इट फॉर योर ओन पर्सनल गेन्स, एंड मे बी यू नो। और जब उसके अंदर भी मैंने वर्ड आज़ादी वर्ड कर रखा कि तुम्हें किस किस चीज़ों से आज़ादी चाहिए। मुझे चाहिए क्या आज़ादी, जीने मरने की आज़ादी, यू नो, फिल्मी खानों से आज़ादी। Looking at the present scenario across the world, what is the value of life for you? What do you think is the value of life now? I think value of life has really, in eyes of people, it is nothing.
वी आर टू मैनी, 7-8 बिलियन पहुंच गए हैं, तो मुझे लगता है लोगों को अब इतना कोई रह नहीं गया है। और हर इंसान की लाइफ का जो एक मोटो है कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ, बट इन माई आइज लाइफ इज़ वेरी वेरी प्रेशियस, इट इज़ वेरी वेरी वैल्यूएबल, वी ऑल मेक अ डिफरेंस। हम लोग सब के सब स्पेशल हैं, और अगर ये दुनिया हम सबसे बनती है, समय हम सबसे बनता है, अगर इफ़ वी ऑल ऑफ अस डोंट आर नॉट, एज आई सेड, हैप्पी एंड वर्किंग एंड पॉजिटिव, तो then what are we offering to the kids in the future? Right. You know it very very closely. There's going to be a little bit baby coming into your family also, and that what are you offering that kid? Viruses, wars, trade wars, child trafficking. ये कोई दुनिया थोड़ी है. So what I'm trying to say is we all should make a, like for example now, perhaps this is the first time anybody asked me this question, but these questions are very important. It should be asked. So I look at life in a very very great way. Life is very important. So I think, of course, I want to I want to give so many messages to people. So this is one of them, because of late I've seen that, be it India, be it America, be it Middle East, be it anywhere, there's no value of life. And there's no value. नहीं है वो, everything is used for their own gains. Absolutely. So value है ही नहीं. बिल्कुल. So इस पे if there is a song that value of life क्या है? Sale. मैं उसमें यही तो बोल रहा हूँ. हाँ. See, the whole song is कि हर sale सब पे लगी sale. हाँ. वैम बैम थैंक यू मैम सच्चा प्यार फेल, 10 की मोहब्बत 100 रुपए का तेल. यू अंडरस्टैंड? सो इन माई ओन वे कि भैया तुम्हें तो 10 रुपए में भी मोहब्बत मिल सकती है, तेल तुम्हारा 100 रुपए का पहुंच गया, और वो जो 10 रुपए की जो मोहब्बत है वो शायद 10 मिनट भी नहीं चलती. सुना दो वो गाना, ऐसे ही सुना दो. कोरस से सुनाऊंगा कि सेल सेल सब पे लगी सेल, वैम बैम थैंक यू मैम सच्चा प्यार फेल है, 10 की मोहब्बत और 100 रुपए का तेल, सेल सेल हर दिन नया ज्ञान पे. ये सब लोग बैठ के ज्ञान सब लोग दे रहे हैं, कर रहा है कुछ नहीं है कोई, इंक्लूडिंग मी. मैं भी क्या कर रहा हूँ? आई एम नॉट बीइंग एबल टू चेंज द वर्ल्ड. मैं तो अपनी जिंदगी ढंग से जी लूँ, वही बहुत बड़ी बात है. और आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट मैसेज टू एवरीबडी. अपनी जिंदगी ढंग से जियो, किसी और की जिंदगी खराब मत करो अपने गेन के लिए. व्हाई स्पॉइल समबडी एल्सेस लाइफ? राइट. इट्स नॉट सो इजी टू बी ऑनेस्ट, बट इट इज नॉट सो डिफिकल्ट टू बी ऑनेस्ट. क्या बात है. Do you think the indie scene is coming back? Independent music is coming Indie back? scene was always there. मैं बताऊँ इंडी सीन का प्रॉब्लम क्या है कि इट इज नॉट डज नॉट हैव द काइंड ऑफ मनी दैट इट नीड्स टू प्रमोट. अब सारा का सारा अगर फिल्म वालों ने खरीद रखा है, चाहे वो डिजिटल स्पेस है, म्यूजिकल स्पेस है, कोई भी विजुअल स्पेस है, तो फिर कहाँ से इंडी म्यूजिक आगे बढ़ेगा? सो इट्स वेरी डिफिकल्ट. Do you think having more following on social media is a plus point, or that is what is required these days? It is required in the corporate sector कि भी हाँ ये this artist is working, but in the long run it doesn't make a difference. Okay. The problem is, bro, all of us who came at that time, no, whether anybody around us, we are all accepted as people, what should I say, performers even now. The new people, to make an impression, have to have that following, because then they are doing things, you're making reels, you're doing something or the other which is vague, people are dying because of it. वो जाके मतलब edges पे जाके अपने reel बना रहे हैं. In the long run it doesn't matter. In the short run, in the moment it works. Would you want to collaborate with the new age artists, like there are a lot of new age? Ritviz is there, Anuv Jain, Pratik Kuhar, etc. Pratik, I just met Pratik recently. He's a lovely boy. I've just done a Spotify ad with 2-3 very young people who I didn't know them so well. There's a boy called Sai Abhyankar. There's a girl called this is Ginny, and there's another boy called Char Diwari. And they all are up and coming. I just did a song with them, and it sounds great. It's fun. तो मैं तो कभी अपने को लिमिट नहीं करता. मुझे मेरे लिए दुनिया है. मैंने ये नहीं कहूँगा कि मैं ये नहीं करूँगा और वो नहीं करूँगा. हाँ, कभी गंदा गाना नहीं गाऊँगा, और मतलब डबल मीनिंग सॉन्ग नहीं गाऊँगा. ये सब चीज़ें नहीं करूँगा. Whatever makes my mother ashamed of me, I will never do. Okay. This is my deal. मैं नहीं करूँगा. उसके लिए मुझे जितना भी पैसा मिल जाए, जो भी मिल जाए, और कोई गलत काम, जो चीज़ मैं बिलीव नहीं करता हूँ वो नहीं करूँगा.
But otherwise, I'm open to collaboration with everybody, and you always learn. And life is about learning. The day you're learning, it's all over. You've mentored so many young artists. Yes. You've mentored them. People have learned from you. और वो एकलव्य वाली कहानी भी है, आपको सुन सुन के लोग बढ़ गए हैं. और जो बैंड का एक एग्जाम्पल था वो आपसे लिया. मैं खुद, मेरा जो कॉलेज बैंड था, आई हैव टेकन एग्जाम्पल फ्रॉम यू कि यार ऐसे करेंगे, पीछे से गाएंगे वक्रतुंड महाकाय, फिर हम स्टेज पे चढ़ेंगे, फिर ऐसे होना चाहिए बैंड, ये सब होना चाहिए. व्हाट्स द वन थिंग यू सी देम डूइंग टुडे दैट मेक्स यू वांट टू शेक देम एंड से स्टॉप इट? Bro, everybody's got their own journey. कुछ तो बोलो आप, कुछ तो बताओ. कोई तो आपको लगता मैंने है बोला यार ये ब्रो, मत कर मैं यार. किंशुक और काइना को कुछ नहीं बोलता हूँ. मतलब अपने वो तो बच्चों आपके घर में ही के पॉप चल रहा है, उसका के क्या पॉप चल करें? रहा है, तो मैं उनको कुछ नहीं बोलता हूँ. आई रियली बिलीव लाइफ इज योर जर्नी. यू नो, अगेन एज आई सेड, मेक पीपल हैप्पी. किसी की जिंदगी खराब मत करो, बट अदरवाइज इट इज योर जर्नी. तुमने जो डिसाइड करना है, जो करना है, जैसे करना है करो. अगर किसी दिन आके मुझसे मदद मांगोगे, आई विल बी देयर. I'll be there, 100% be there. But otherwise, your life is your journey, your decisions, and your walk of life. Do it. What would you want to tell the budding artists? Be yourself. Be yourself. Yeah. Do your. Don't try to be like anybody else. अपना गाना गाओ, अपने गले से गाओ, अपनी बात बोलो. मैंने भी तो अपनी बात बोली थी. और मैं कोई दुनिया का सबसे अच्छा ना गायक हूँ, ना कंपोजर हूँ, ना राइटर हूँ. So what has changed that era and this era? I said this on stage a few days back. That era was about love. This era is about money. That's the difference. 10 की मोहब्बत, 100 रुपए का तेल. क्या बात है. What do you want your kids remember you as? No, kids तो usually अच्छी तरह से याद करते हैं. I will just tell you the day my father died. I saw people coming to our house, and he was an ordinary doctor. He was not a star. He was not a politician. He was nothing. He was just a doctor. मेरे घर में उस दिन इतने लोग आए थे ना, तू हिमांशु, तू मैं बता नहीं सकता हूँ. एंड दे ऑल वाज सेइंग कि डॉक्टर साहब ने मुझे ठीक किया, डॉक्टर साहब ने मुझे खाना खिलाया, डॉक्टर साहब मुझे प्यार करते थे. ये सब सुन के ना, दैट प्राइड आई फेल्ट इन माई हार्ट. फॉर अ मोमेंट आई फॉरगॉट दैट ही डाइड. आई सेड दिस गाय इज इमॉर्टल. ये तो हमेशा जिएगा. And you will not believe, it's been now, what, 35 years, almost 34 years since he passed away. People still have his prescriptions. And they refer to them only to go and get a medicine. अब इससे बड़ा what else can a kid remember? So maybe when I'm gone, somebody will come and say कि मैं मायरी गाता हूँ. Maybe Kinshuk will be happy, Kaina will be happy. Otherwise मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता how people remember me. जो जीवन में, when you are alive, if people talk about you well and with love and respect, that's what you need. इसके आगे नहीं चाहिए होता. Rapidly आपसे सवाल करते हैं. This is करो, a rapid करो, fire. करो जी. Let's see how rapidly you can give the answer. A thing you have done before but will not do again. I don't regret anything I've done. Nothing. हंसे क्यों थे इतना तेज? तूने कहा जो चीज़ करेक्ट की है फिर से नहीं करूँगा. एक ही चीज़ है जो मैंने की हुई है, तुझे पता है, और वो मुझे नहीं पता मैं फिर करूँगा कि नहीं करूँगा. मिल गया, इसको काट के लगा देना. हो गया, चलो इंटरव्यू डन. यही तो चाहिए था. A part of your body you love. Again तू अजीब यार बातें क्या बोल रहा है. बताओ ना. Nothing. I don't like anything about myself. हाँ, hair. Do you wear that topi? There's a silky topi which comes. My wives wear it to save the curls. No, I don't. No, ऐसे सो जाते हो. मैं कुछ नहीं करता यार. मैं मुंह पे कुछ नहीं लगाता, बालों में नहीं कुछ लगाता, मैं कुछ नहीं लगाता, मैं कुछ नहीं करता हूँ. Okay. I am very worried about chemicals and these kind of things. You know, when God has given you something, naturally keep it, ना. हाँ. अब अगर भगवान को चाहिए होता कि टोपी बना के देता, पैदा होते. नहीं, अब टोपी मैं पहना रहा हूँ ना आपको. तू नहीं बनाएगा, तू मेरा भाई है. नहीं, वो टोपी आप ट्राई कर सकते हो. It keeps your curls. But I'm not. I just want them to be, मतलब hair to be there. I don't want to get bald. That's about it. Your favorite song, Aana Meri Gali ya Maeri? আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ও গো বিদেশিনী. আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ও গো বিদেশিনী. তুমি থাকো সিন্ধু পারে, তুমি থাকো সিন্ধু পারে,
ওগো বিদেশিনী ওগো বিদেশিনী Wow, wow. It's a beautiful song. Your most rock star moment in Operation Theatre and on stage. Operation Theatre was when, under the guidance of my mother, I delivered a child. It was the rockstar moment, and in that moment I found, you can't imagine how much respect I found for women. Yaar, this is life. Is coming into the world. This woman has been carrying it. That rockstar moment. On stage, it was in a college in Delhi. A woman came and bit me on my lips. उसने मेरा पूरा, जैसे होता ना कोई ड्रैकुला वाला पूरा खून निकाल दिया, और उसके बाद she turned to the crowd and she did this. I said, यार रॉकस्टार तो ये है, मैं तो क्या हूँ? ये रॉकस्टार है. टेस्ट करा लिया था ना उसके बाद. उससे आई होप उसने करवा दिया था. वो तो खून पी के गई थी. Indie artist you love to jam or vibe with. Then I just met this boy Sai Abhyankar. He's fabulous, you know. मैं बोल रहा हूँ, मुझे I will be very happy to jam with anybody who stays in the independent state. You know, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं फिल्मों में किसी से नहीं गाना गाऊंगा, वो भी ठीक है. बट अगर कोई ऐसा म्यूजिक करे जो कि अलग है, अच्छा है, सुंदर है, और उसके मन में म्यूजिक के लिए और अपने ऑडियंसेस के लिए इज्जत है, आई एम अवेलेबल. उदित जी आ गए तो फिर आप जैम नहीं करेंगे उनके साथ? I love Udit ji, yaar. I love that guy. Even though he is forcibly kissing women publicly, but I love that guy. जिसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ, ना औरतों को प्रॉब्लम थी, ना उधर जी को प्रॉब्लम थी. जनता को प्रॉब्लम थी. Your guilty pleasure song no one would expect you to love. कमरिया 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 करेला पाला. Lollipop. In fact, I'm going to be very soon be doing a new version of Khai Ke Paan Banaras wala. Okay. Yeah. वो तो आप इस लेवल पे ले जाओगे, कोई गा ही नहीं पाएगा. मैं ही गाऊंगा. उसमें अमिताभ बच्चन चाहिए होगा तो मैं आऊंगा फिर. So एक काम करते हैं, आगे के जो सवाल है ना, you take your favorite actor's name. Let's see if I can ask in their voice. Oh, वो it'll be easy for you. My favorite actor is Rajesh Khanna. Gen Z के बारे में तुम क्या कहना चाहोगे पलाश? Amazing. What do you have to say about Gen Z? Definitely more evolved, but lost connection with reality. It's a lost connection because everything is make believe, and plus parents, people like us, you know, we are not bringing up the children the right way. You know, everything that we have, we are speaking about is all about getting, reaching, success, money. These are all wrong values to teach. So in this, they have definitely more evolved, but कहीं ना कहीं वो reality से एक connection टूट गया. How do you go viral on social media? I don't know. I have never gone viral. Only viral I know is the fever. That's about it. I don't know. I really don't know. Okay. But I know from sources that everything is manufactured. बहुत कम चीजें होती हैं जो naturally चीजें होती हैं. Complete the sentence. If I would not be a musician or a doctor, I would be A criminal. a criminal. Yeah. Okay. I like that life of, hey, मजा नहीं आया, खत्म करो. Wow. Yeah. Definitely. I mean, there's certain kind of power in that, यार. I've always been such a nice guy, यार. मैं पूरी जिंदगी पर nice guy रह गया. मेरी दूसरी साइड में तो कुछ तो ड्रास्टिकली ऑपोजिट होना चाहिए. एंड द क्रिमिनल, वो जो होता है ना रॉबिन हुड वाला क्रिमिनल, वैसा वाला क्रिमिनल. बुरों की बत्ती मारो, अच्छों को पैसा दो. अच्छा, कवर अप कर रहे हो आप? नहीं. अभी कवर अप किया. मजा नहीं आया, खत्म करो इसको, खत्म करो. हाँ, वो तो है ही. जनरल अलादीन. he's my favorite actor. Yeah, what a brave guy, यार. Yeah. एक कंट्री की बत्ती मार दी यार. वो लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं उसको. हाँ. तो बीवी ने उसको छोड़ दिया. उसको लगता होगा यार गोली चली गई, मुझ पे लग गई तो काम खत्म हो जाएगा. किसकी बात कर रहे हो आप? साशा बैरन कोहन. हाँ. His wife is divorced, ना? अच्छा. Isla Fisher.
उसको लगता होगा यार ये तो बोलता रहेगा, इसको किसी दिन गोली लगेगी, कहीं बीच में मैं आके तो गोली मुझे उड़ा देगी। अब तो काफी सीरियस रोल्स भी कर रहा है वो। नहीं बट ही इज दैट्स व्हाट ही इज अ फिनोमिनल एक्टर, Brilliant actor. ब्रिलियंट एक्टर। बट यार जो उसने जो ये कैरेक्टर बनाया ना, इसको तो कोई Oh, they're phenomenal. I mean, मतलब nobody can match it. Man, I will compare him to Charlie Chaplin, and that's it. Your all-time favorite line you have written? जिंदगी है धुआं तो क्या, बुझ गई हर सुबह तो सुबह क्या, तक क्या? रूठा मुझसे खुदा तो क्या, हो गए हम जुदा तो क्या. I mean, I think the opening of Mahfouz is my favorite opening out of all songs I've written. जबकि हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग ओपनिंग्स होते हैं, बट दिस जिंदगी है धुआं तो क्या, मतलब है तो धुआं ही ना. वी डोंट नो वेयर वी आर गोइंग, जस्ट Wow. फासले थे हजारों दरमियान, वक्त के थे हजारों हजारों इम्तिहान, फिर भी बन के निशान, तेरे होठों के किसी कोने में हंसी की तरह मैं महफूज हूँ, तेरी आंखों के छिपे दर्द में आंसू की तरह मैं महफूज हूँ. Goosebumps आया था यूफोरिया सुन के. Wow. Define Indian music industry in one word. करप्ट. Corrupt. How do you earn money now with your music? Because you know पहले था cassette sale था, अब तो सब जगह होता था. yeah, not only live gigs, and if you're very blessed and you are with a good label and who, then obviously the streaming helps you big. But for example, the best thing that has happened to our country in a lot of ways is Spotify, because it is actually democratic, it is independent, and they actually help to make music better taste for music. So I will say this. अगर बहुत लकी हो और तुम्हारा गाना बहुत चल गया, बिलियंस ऑफ स्ट्रीम्स आ गए, तो वहाँ से पैसा आ सकता है. रॉयल्टी, कोई सच्चा आदमी है तो तुम्हें रॉयल्टीज दे देगा, विच इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी आर डूइंग धूम एंड फिर धूम अगेन. बट लाइव गिग्स रॉयल्टी आती है पुराने गानों की? नहीं आती ना. नहीं तभी- आती? तभी तो मैं री रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ओके. बिकॉज मैंने अपने सारे के सारे, तभी तो ऐसे करप्ट, आई गेव अप ऑल माई राइट्स टू द लेबल. तो मेरे पास कुछ भी नहीं, इतने मायरी से मैंने पैसा नहीं कमाया ब्रो. ये सोचो मायरी कहाँ नहीं बचता है और कौन नहीं गाता है. But I've never earned any money. So what we are doing is we are re-recording both the albums so that I retain all rights. मतलब we retain, Euphoria retains all rights. ओके. So कहीं जाके 10 रुपए भी कमाए तो हमारे पास आएगा. That is right. मुझे पैसे का वो नहीं है, लालच नहीं है. ये है कि जो चीज़ राइटफुली मेरी है, मेरे पास होनी चाहिए. हाँ. नवाजुद्दीन सिद्दीकी. मेरे को एक बात बता, कौन सा एक फैशन ट्रेंड है जो तेरे को समझ नहीं आता? बाप का, दादा का, भाई का, जिसका बोलना बोल. जल्दी बोल. एक्चुअली मुझे फैशन के बारे में पता नहीं है, बट हाँ ये जो है वो तो देख रहा है, तेरे को मालूम नहीं है. जो फैशन शोज होते हैं, ये क्या फैशन ट्रेंड है? वो तो करने पड़ते हैं. Exactly. That's a showcase of Exactly. the collection. Recently, I mean, there was one actor who came on stage wearing a pajama. मतलब तो मुझे बात ही समझ नहीं है, तो चलो ठीक है, होगा. You know, मैंने पहले बोला था कि I'll describe the change of era we have seen standing behind stage. So there was an era जब स्टेज पे पलाश सेन शर्ट उतारता था वो अभी भी है. और बनियान नहीं पहनता था तब. हाँ, अब बनियान पहनता हूँ. ठीक है. फिर एक बीच में आया, हमने बोला मत उतारना, मत उतारना, मत उतारना, और उतार दिया. ठीक है. थोड़ा सा तोन निकला हुआ था उस वक्त. उसके बाद बनियान पहनना शुरू किया. सो वी हैव सीन you from being bare top to now wearing a banyan now. Yes, yes. That ना, is the- because I understood कि यार बेयर में ना कुछ मजा नहीं आता है, क्योंकि अब दूसरे बंदे को होप ही नहीं है कि इसके आगे कुछ जाएगा. बनियान पहने के तो there's a lot of hope in the front rows who are thinking अभी बनियान भी हटने वाली है, वो नहीं हटेगी. तो मैंने कहा यार, और हमने कहा उम्र हो गया, बनियान उतारना मत प्लीज. मैं आई रिमेम्बर वन ऑफ द शोज, आलोक और मैं पीछे खड़े, अरे यार अभी शर्ट उतार उतार दी. वो तो हो, देख यार वो वो तो ना, गर्मी इतनी हो जाती है ऑफ कोर्स. नॉट ओनली दैट, वो ना वो है शगन है, हाँ. वो करना पड़ेगा. एंड कैन यू प्लीज डिस्कार्ड ऑफ योर बैटमैन सैंडो? कितनी खरीदी है वो? मैं नहीं खरीदता ना वो, मतलब वो बैटमैन नहीं है, वो जॉकी की बनियान है. एंड नहीं, वो पर्पल वाली है ना? हाँ, दैट इज विद जस्ट वन लुक, हाँ. विद आइटम. हाँ. Oh no, sorry, with sale. That is with one look. So there are multiple looks. One is that the black bandmaster look, the white bandmaster look. Then there's a khamkha look, and then there's a sale look. Sale look.
The item look is the longest running Yeah. look, which is going But on. because it connects, because that is वाले. my tribute to शादी bands. Right. कभी शादी बैंड्स के साथ कोलैबोरेट करने की सोची है? Bring a brass band. तो हमने किया हुआ है on stage. On stage we have done. There's a brass band that came and played Dhoom Pichak, and then they moved out and Euphoria starts playing. Okay. Oh, हमने wow. किया हुआ है. Nice. Tell me next voice. फरहान अख्तर. Yeah. From one rock star to another rock star. I'm gonna ask you a very simple question. Unbelievable. Oh God. Unbelievable. Really? Okay. If Euphoria had to collab with a rapper, who would that be? रफ्तार. Why? He is the best. Rap करूँगा. Rap करोगे. Rap ही करोगे. But that's one genre that I would like to explore. Rap. Okay. Next voice. One of my favorite people in the world, Javed साहब. देखो बेटा पलाश अब ये मैं तुमसे पूछना चाहूँगा कि द क्रेजीएस्ट फैन मोमेंट यू हैव एवर हैड ये बता दो तुम Oh, yeah, there's a beautiful fan moment I can tell you, which is in Dubai. A girl called me. She got to know that I'm coming to the radio station. She waited for days and days, and then she eventually called me up and she said, "Sir, I just wanted to tell you, 3 years or 4 years back, I lost my father, and I was totally crushed and felt कि मैं खत्म हो जाऊंगी. But I heard your song Mehfooz every day and multiple times in a day. It has helped me recover." I think it was, I just really felt so nice, you know, कि मैं एक गाने की वजह से किसी की ज़िंदगी बच गई और जो हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं. She got the opportunity to speak to me and it's nice. Wow. देखिए सर ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि your biggest 90s crush, Bollywood और otherwise कौन था? Oh, Your biggest 90s crush. I think everybody's crush at the 90s was Sonali Bendre. We were all crushing. जो हाल दिल का and she looked like that girl that you could marry. बताओ कौन कौन से कलर की ड्रेस थी उसमें? अरे यार मैंने बताओ। इतने ध्यान से तो मैं किसी को क्या जिंदगी में बात देखा. कर रहे हो? नहीं बिल्कुल. There was red, blue, yellow, white. Definitely you are more interested than I was. I was already married in the 90s. तो मेरे Yeah. So there were two girls. There were Sonali Bendre and Aishwarya Rai. I mean, बस. Okay. And outside India? 90s में there used to be a band called Bangles. The Right. lead vocalist of that Susanna Hoffs. She was the one. और मैं ये बहुत गंभीरता से बोल रहा हूँ. ये कैसे गंभीरता है मेरे को ये बताओ. सारी इमेज बिगाड़ I के think चला I think जाऊंगा. I think एक 80s की थी लड़की जो कि I mean Brooke Shields was an Right. actor and I think the whole world was crushing on her. So let me say that 2 from India, 2 from Wow. abroad. Wow. Brooke Shields. Yes. Last 3 questions. Tell me. रणवीर सिंह. रणवीर सिंह. उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी. Do Ranbir Kapoor for you. रणबीर कपूर. One medical myth you wish people would stop believing in. That you can't have multiple eggs in a day. Okay. It's very good for protein and there's no problem. Okay. और बिकॉज एग के जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपके जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अफेक्ट नहीं करता है. सो ऑल द पीपल नॉट ईटिंग द योक और एग वाइट्स खा रहे हैं और अंडे नहीं खा रहे हैं, प्लीज ईट एग्स. दे वेरी गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन एंड एग इज ओनली प्रोटीन. Full egg. Full egg. योग भी खाना जरूरी सब है. कुछ खाना है. Okay. मतलब अगर आप इतनी एक्सरसाइज नहीं करते तो 2-3 ठीक है, बट हाँ अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो फिर तो यार 6-7 खाइए और अच्छी तरह खाइए. Eggs are very good sources of protein. They are in fact complete foods. And all the people thinking that about milk, please stop it. Because milk is, आयुर्वेद में लिखा हुआ है दूध जो होता है वो गाय का जो दूध है वो सिर्फ बछड़े के लिए है, उसके आगे दूध नहीं लेना चाहिए. Okay. अशोक कुमार. बेटा रेलगाड़ी बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 मुझे ये बताओ वन वर्ड दैट डिफाइंस पलाश सेन ऑफ 20s. Maniac. That's how. In fact, हम लोग जो साइकाइट्री पढ़ते थे, अभी तक याद है कि जो बाय प्रोफेसर यूज से अ मैनियक उसके आगे लिख दो पलाश. A maniac is one who's always on his toes, on the toe, on the go. So I will only define myself as a maniac. मेरे इतने सारे ideas थे and I wanted to do so much. I don't know how much I've really achieved, but yeah, maniac. There used to be a song called Maniac also, so everybody used to point at me. Okay. शाहरुख की आवाज.
पलाश, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अरे वाह, a song you regret releasing or wish you would have done differently, कौन सा गाना होता हो? none. As I said, I don't regret anything I've done. कोई तो गाना होगा जो तुमने सोचा होगा कि इसको मैं थोड़ा अलग कर सकता था. They all ऐसे होने थे, ऐसे ही हुए. ना मेरे मन में कोई रिग्रेट है, ना लालच है. So I think it's okay. I'm not a very ambitious person. जो मिला अच्छा था और जो नहीं मिला वो मेरी किस्मत में नहीं था. You spoke a lot about Shah Rukh Khan of late, कि वो आपके स्कूल में थे, आप लोग दोस्त थे. Because Kinshuk met him. हाँ. किंचुक was when he was because see दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उसका इंग्लिश वर्जन किंचुक कर रहा है. So शाहरुख came to the rehearsal and it was revealed because he himself revealed that when I was a young guy and I used to do plays, my voice was a singer called Palash Sen. So when they said Palash Sen, then Kinchuk said that's my dad. So then वहाँ पे उसकी और किंचुक की बहुत सारी बातें हुई और ये सब हुआ and lot of memories came back. One of the finest guys I've met in my life. I mean, he is successful as an actor. वो दुनिया में कुछ भी करता, जिंदगी में कुछ भी करता, he would have been successful because he's an extremely intelligent man. He's a people's man and talented. Oof, phenomenal. What do you have to say to the world? What message do you want to give to the world? सच्चे रहो, be honest, make people happy. इस आजकल बहुत सारा सेल्फ लव के बारे में बात होती है, बट मैं हमेशा कहता हूँ इफ़ यू मेक पीपल हैप्पी यू विल बी हैप्पी. बी जेनरस, ऑलवेज बी जेनरस. whatever you can give, you should give. The more you give, the more you will get. Encourage people to do better in life and be happy with their happiness, be happy with their success. It's something that people don't take that seriously. People always think that अगर मैं successful हो जाऊंगा तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा. उस सक्सेस से किसी को खुशी नहीं मिलती, नहीं मिलती. बिकॉज यू नो इंसान होता है कि उसको ना ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए. ये 3-4 चीज़ें बोलूँगा. ऑल पीपल हु आर ट्राइंग टू डू समथिंग इन आर्ट्स, बी योर सेल्फ, हैव योर ओन वॉइस, हैव योर ओन थॉट, express yourself the way you want to, and always don't be worried, be honest. बोल दो. yes, अगर आपकी सच्चाई से किसी और की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है तो मत करो, then leave it, let it go. But always be honest, express yourself in an honest way and do great interviews with Tuhinshu Chaturvedi. Whatever he is doing it the right way. He is my bro and I will always love him. You know, इस पे मुझे याद आया कि once I was feeling happy, then happy got disgusted and left. Oh God. But on that note, in conversation with the father of Hindi rock in India, Dr. Palash Sen, always be happy, be honest, keep helping each other and just have fun. That is what he's telling you. He's coming up with more and more music and you will start living in nostalgia when the music will hit you once again. Dr. Palash Sen, an icon of India, Indian music on the Tuhin Show. Thank you so much for talking, Dada. Thank you, Tuhin. Thank you. I wanted to give one more line and forgive, but don't forget. कितनी लाइन मारते हो यार आप? तेरे शो पे मार रहा हूँ. एक गाना सुना दो. कौन सा गाओगे? चलो धूम पिचक सुना देता हूँ. हाँ. वो तो तू भी गाएगा. देखिए अब की ठीक लग रहा है कि नहीं तेरे. So this is a song that Tuhin came and sang in the studio for me, and we have a history which is very, very endearing and very, very happy. He heard me singing on stage just behind his house, and that day and today, and we've always been who we are. He's much younger than me, but I think he's much wiser than me. Hey यार मेरी धड़कन नारे, चांद के हैं संग सितारे, साथ रहते हैं वो सारे, मैं अकेला रे. खिल खिलाती है वो नदिया, नदिया में है एक नैया, नैया का मैं हूँ कि पहिया, क्यों अकेला रे. अब सबको पता क्या तेरा मेरा नाता रे, तुम हो मेरी मैं तुम्हारा, छोटा सा संसार हमारा, आगे जाने राम क्या होगा. कहता है जो कहे जमाना, तेरा मेरा प्यार पुराना, आगे जाने राम क्या होगा.
faster. आगे जाने राम क्या हो, आगे जाने राम क्या हो, आगे जाने राम क्या होगा, आगे जाने राम क्या हो, आगे जाने राम क्या हो, आगे जाने राम क्या होगा, आगे जाने राम क्या हो, आगे जाने राम क्या हो, आगे जाने राम क्या होगा, आगे जाने राम क्या हो, आगे जाने राम क्या हो, आगे जाने राम क्या That's super. That's Palash Sen featuring Tuhinanshu Chaturvedi. Watch out for him singing. इसकी ना कहानी है कि जब मैं कॉलेज में गया, जब रैगिंग होती थी तो मैं गाना गा देता था, और मेरा एक दोस्त था प्रणव व्यास, वो टेबल बजाता था और हम लोग निकल जाते थे, बच जाते थे ना. बच जाते थे. That's the trick of getting saved from ragging. Sing a Euphoria song. धूम पिक्चर.